Good. Welcome to NDS North America Group. Our next semester will be on 25th September, which will be on a regular time. We will start at 2:30 p.m. California time. Today, you want to say something? Yeah, right. So, a disclaimer, we always have to, by American law, we have to explain the disclaimer. We are not doctors and we cannot be responsible for your health. So anything we would tell you is we're going to share our experience with you, and you have to, whatever care provider you have to stay with them, and we will guide you and we will share our experience with you. With that, Punita Ben, why don't you introduce our today's speaker? And today's program is going to be 1 hour from the speaker and a half an hour for the question and answer. Go ahead, Punita. I would like to say about the Kiran Watare. He is the great speaker. And welcome Kiran Bhai, and say hi to Pallavi Ben. We are so lucky to have him today. The way he started NDS, because 12 years he had Sandiva, asthma, allergy, and his wife has some weight problem. Everything has been cured in the next 15 days. So he believed in the NDS system. So he decided, if this can help me, so he has decided to help all the human being and everyone he come across in front of him. So he's giving us so many speeches, big seminar, and we are so fortunate just to have him, because usually to take his appointment is a nightmare. So, and he just helping people in Maharashtra and in Gujarat and so many other places. Welcome to Kiran Watare. Okay, well, one more thing I would like to add. Kiran Bhai is a Dr. Watare. He has completed his medical naturopathy graduate. He's a graduate of naturopathy medicine, and he's been practicing for a long time. And he is a very decent human being. Besides doing the work for the people's health, he also is a very big speaker and a pracharak for the Swadhyay. He goes Gujarat and Maharashtra. He's doing a tremendous work in a very lower level and a fishing area. I have to apologize. Usually our speeches are in English, but आज हम लोग हिंदी में बात करेंगे. और डॉक्टर वाटारे जब भी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो इंग्लिश में भी बोलेंगे, लेकिन आज हम हिंदी में बात करेंगे. जिसको भी कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज चैट से मुझे सवाल करिए, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दूंगा. और जब भी टाइम होगा तो मैं कुछ ना कुछ इंग्लिश में आपके साथ करूंगा. तो पहले प्रोग्राम स्टार्ट करने के पहले मैं पुनीता बेन को एक गिफ्ट देने वाला हूँ. पुनीता बेन, आपके लिए डॉक्टर वाटारे का पहला बुक बाहर हुआ है. उसका नाम है रसाहार डाइट कैसे करें. उनकी पहली बुक है, बहुत ही फेमस हो गई, सारे इंडिया में सब लोग पढ़ते हैं. अभी तो हिंदी में आई है, अभी काफी डिमांड हो रही है कि उसकी हिंदी, इंग्लिश एंड गुजराती में ट्रांसलेट हो जाए. तो हम लोग उनके साथ वर्क करके वो भी करेंगे. हमने खाली हरेश भाई को थैंक यू बोलेंगे, टेम्पा एनडीएस ग्रुप को. वो लोग ने मंगवाई, हमें 100 कोटा हमको भी दिया. तो हम लोग यहाँ आप अपने व्हाट्सएप में देखते रहेंगे, कैसे आपको मिलेगी वो आपको हम बताएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में. पुनीता बेन, ये आपके लिए है, ये पहली बुक आपको हम दे रहे हैं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो अभी किरण भाई, अभी माइक्रोफोन इज योर्स. अभी आपको टाइम, आप जो भी टाइम लेना चाहिए वो लेना. लास्ट आधे घंटे हम सोच रहे हैं कि हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, और जिनको ज्यादा रहना है तो वो रह सकते हैं, लेकिन हमारा प्रोग्राम 1.5 आवर्स का होता है. तो उसके साथ किरण भाई, आप मेरे गुरु बंधु है, आप मेरे सीनियर बंधु है. हम जैसे एनडीएस ऐसा यहाँ कर रहे हैं, आप वहाँ कर रहे हैं. आप तो बहुत बड़ी स्केल में कर रहे हैं, हम तो छोटे हैं यहाँ. तो आपका नॉलेज हमारे साथ बांटिए प्लीज. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया. पहले तो मैं आप सभी
अमेरिका के जो टेम्पा, फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया में बैठे आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे सेवा का मौका दिया है और मेरे लिए बड़े भाग्य की बात है। बड़े भाग मानुष तन पावा सुरसु दुर्लभ सब ग्रंथ नि पावा। इसका अनुभव मुझे आज हो रहा है कि कहाँ मैं यहाँ बैठा हूँ इंडिया में और कहाँ अमेरिका के लोग मुझे संधि दे रहे हैं। जो लोग मुझे पूछते हैं कि एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम इसका क्या फायदा होता है, तो मैं आज बताना चाहता हूँ कि यही फायदा है कि ज्ञानी लोग मेरे जैसे सामान्य आदमी की बात सुन रहे हैं और क्या फायदा चाहिए। तो आप सभी को फिर से एक बार जय तुलसी राम। सबसे पहले मैं अपने सभी गुरुओं को नमस्कार करूंगा जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे आदरणीय चौहान साहब जी जिन्होंने न्यू डाइट सिस्टम नाम दिया इस त्रिसूत्री साधना को, उनको भी मेरा दिल से नमस्कार है। जो इतने प्रामाणिकता से 25 से 30 साल तक जो काम करते आ रहे हैं, मैं तो कहूंगा इस उम्र में भी आज वो एक युवा है, हमारे लिए एक प्रेरणा है कि जो इस उम्र में भी आज इतना काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो प्रेरणा स्थान है। मैं उस भारतीय संस्कृति को नमस्कार करूंगा जिसे हम कहते हैं दुर्लभम भारतीय जन्म, क्योंकि भारत में जन्म मिलना ये बड़े भाग्य की बात है। जिसने संपूर्ण मानवता का कल्याण चाहा है। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सभी मानवता का कल्याण, आरोग्य, स्वास्थ्य जिन्होंने मांगा है, ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति है। इस भारतीय संस्कृति को मेरा नमस्कार है। अब ये जो न्यू डाइट सिस्टम है, इसके बारे में हम थोड़ा सा मुझे जो समझ में आया है उस हिसाब से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 100 साल पहले ये जो त्रिसूत्री साधना के सिद्धांत है आदरणीय पंडित बद्रीनारायण त्रिपाठी जी ने जो दिए और उनके द्वारा जो चल रहा है यज्ञ, सभी लोग अपने अपने शक्ति से इस साधना को आगे बढ़ा रहा है। उसमें से मैं एक साधक हूँ। आज परिस्थिति अगर देखते हैं, भारत से लेकर अमेरिका तक ऐसा कोई भी देश नहीं है जो एक वायरस से डरा नहीं है। बहुत बुरा लगता है एक छोटा सा वायरस जो दिखाई भी नहीं देता है, उसने सभी मानव को डिस्टर्ब कर दिया है। क्या कमी है हमारे पास? 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं। क्या कमी है? अस्पताल की कमी है, दवाओं की कमी है, उपचार पद्धतियों की कमी है, विचारों की कमी है, पैसे की कमी है, ज्ञान की कमी है, सब कुछ है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे पास नहीं है। स्वरूपम शरीरम नवीनम करत्रम धनुम मेरु तुल्यम वचश्चारु चित्रम हरे रंग गिरिपद्मे मनश्चाय लग्नम ततक्किम 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 ततक्किम। सब कुछ है, फिर भी एक छोटा सा वायरस आ गया और पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर दिया। कितने बेबस, अगतिक, लाचार हो गए हैं हम। अरे एक वायरस आ गया तो हम डर गए, ऐसे तो हजारों वायरस आने वाले हैं, कितना डरोगे? मुझे आश्चर्य लगता है कि इतनी सारी शक्ति हमारे पास होने के बावजूद हम बीमारियों से डर रहे हैं। और तब विचार आता है मन में कि इससे बाहर निकालने का भगवान ने कोई रास्ता दिया नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। कितना संभाला हमने 1.5 साल में, कितने कानून को संभाला। मास्क लगाओ, सैनिटाइजर इस्तेमाल करो, किसी से मिलना मत। अरे बाबू कितना हमने संभाला है, फिर भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। आज भी हम डरे हुए हैं। क्या ये बीमारियां कम थी? डायबिटीज, बीपी, थायराइड, बदन दर्द, कैंसर, हार्ट के प्रॉब्लम्स, चिकनगुनिया, डेंगू, अरे हजारों नाम है बीमारियों के। क्या ये कम थी जो भगवान ने और एक वायरस भेज दिया हमें? अरे एक तो 25-30 साल हमको आराम से जीने के लिए मिल रहे हैं, उसमें भी भगवान तू अपना ये कोरोना भेज दिया है। समझ में नहीं आ रहा है, जिए तो जिए कैसे जिए? तो क्या इसके ऊपर कोई एंटीवायरस नहीं है? सोचो कभी, क्यों आया ये सब प्रॉब्लम? मानस में कहा है बहु रोग योगन्नी लोग है बहुत अंग्री निरादर के फल है। ये जो सभी लोग बीमार है, आज एक घर ऐसा नहीं जिस घर में दवाई नहीं है। लोगों को लगता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, स्वास्थ्य मेरा
इजी मिल जाएगा, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर की मेरी पहचान है। अरे पैसे से स्वास्थ्य मिलता तो पहला माइकल जैक्सन जो है ना, वो 150 साल जिंदा रहता। अब जो रुपए उसके पास थे, इतने सारे डॉक्टर उसके घर पे नौकरी करते थे, इतने सारे डायटीशियन आगे पीछे करते थे, जिम ट्रेनर उसके साथ घूमते थे, ऑक्सीजन की बेड पर सोता था, क्या नहीं था उसके पास, सारे पैसे पैसे और पैसे ही थे, उसको गिनने को समय नहीं था। इतना पैसा होने के बावजूद भी वो 50-51 साल में वो मर गया, और ऐसी बीमारी हुई, पता भी नहीं चला कि वो कौन सी बीमारी से मरा है। तो हम किस भ्रम में जी रहे हैं कि स्वास्थ्य पैसे से मिलता है। मैं कहता हूँ भगवान ने स्वास्थ्य की गाड़ी फ्री में दी है, भाई फ्री की गाड़ी में बैठो, हम सारा पैसा 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 खर्च कर रहे हैं। जिसका मेडिक्लेम ज्यादा है उसको तो और लूटा जा रहा है। कहने का तात्पर्य है कि ये सारे रोग जो है ये क्यों आ रहे हैं, कभी सोचा है आपने? गीता में कहा है एवं प्रवर्तितम चक्रम नानु वर्तयति यया अगायुरिंद्रिया रामो मोगम पार्थ से जीवती। ये सृष्टि का जो चक्र चल रहा है, इस चक्र को अगर कोई तोड़ता है और केवल इंद्रियों के भोगों में अटकता है तो उसको पाप है और उस पाप की सजा भुगतनी पड़ेगी। और हम लोग यही चक्र को तोड़ रहे हैं। जैसा हर एक देश का संविधान होता है, कायदे कानून होते हैं, वैसे सृष्टि का कायदा कानून होता है, नेचर के नियम होते हैं। उस नियमों को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमको भुगतना पड़ेगा, और यही हम सब भुगत रहे हैं, क्योंकि नेचर के रूल हम फॉलो नहीं कर रहे, ना खाने में ना पीने में, और ना ही विहार में ना आहार में। ये सारी जो बातें हम समझा रहे हैं, ये न्यू डाइट सिस्टम जो हम बता रहे हैं, त्रिसूत्री साधना तप सेवा सुमिरन, इसमें आती है। तप का मतलब है भोजन परिवर्तन आपको करना है, कुछ परसेंटेज तो करो। भोजन परिवर्तन करना है तो इसमें 3 बातें आपको समझनी होगी। पहला है सहन करना है, आपको संयम रखना है, और आपको समय देना है। ये 3 बातें अगर आपके समझ में आ गई तो आपको तप का अर्थ समझ में आ गया, अन्यथा आपको कभी जिंदगी भर ये सिस्टम समझ में नहीं आएगी। लोग शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि सर हमने शुरू तो किया है पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो भाई समय दो, अभी भी आपका संयम समय नहीं आया है, थोड़ा सहन करो, संयम रखो, आपके प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं? अभी तो आपने शुरुआत की है। तप में होता है तपो द्वंद्व सहनम। द्वंद्व यानी मुझे फायदा होगा कि नहीं, मैं करूं कि ना करूं, नुकसान तो नहीं होगा ना, यही फायदा देगा क्या? ये बहुत सारे द्वंद्व हमारे दिमाग में बैठे हैं, पहले इसको बाहर निकालो। अगर मुझे करना है तो पूरी श्रद्धा से करो। इस सिस्टम का पहला सिद्धांत है अनन्य भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से ये साधना को अपनाओ। जब ये साधना शुरू कर देते हैं तब आपको दूसरा कुछ दिमाग में नहीं आना चाहिए। हम लोग बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं और इस साधना के साथ उसको भी अपनाने की कोशिश करते हैं, कैसे रिजल्ट मिलेगा? क्योंकि आप प्रिंसिपल को अपना नहीं रहे, और जब तक प्रिंसिपल समझ में नहीं आते तब तक साधना का सिद्धांत और साधना का रिजल्ट नहीं मिलता है। फिर साधना समझाती है कि आपको पूरी श्रद्धा रखनी है, तो हम क्यों इतर दूसरे लोगों की वीडियो देखकर खुद को डिस्टर्ब करते हैं? एक बार इंडिया सिस्टम को अपनाया तो दूसरा भूल जाओ, क्योंकि ये साधना उपचार नहीं है। बाकी दुनिया में बहुत सारी उपचार पद्धतियां बताई है, लोगों को 5 मिनट में रिजल्ट चाहिए, सर्दी के ऊपर बताओ, डायबिटीज के ऊपर बताओ। तो मैं कहता हूँ कि आपको संयम रखना है, सहन करना है, समय देना है, 3 बातें रखो। दूसरी बात है इस साधना में आती है कि आपको तप के साथ सेवा है और सिमरन है। ये 2 बातें जिसके समझ में आ गई वो सृष्टि का चक्र को अपना रहा है, ये बात समझ में। क्योंकि हम जो गाना गाते हैं ईशा हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखो। तो सारी दुनिया कुछ ना कुछ देती है, हमने क्या दिया है? हमने केवल अगर लिया है तो उसका परिणाम उसके जो है रोगों के परिणाम होगा, क्योंकि भोग है तो रोग है, जिसको भोगना है उसको रोग भी भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ भोग भोगने हैं तो त्याग करना सीखिए, इसलिए सेवा है, इसलिए सुमिरन है। तो हमको ये 3 बातों के सिद्धांत समझना है, और ये डाइट सिस्टम, ये डाइट नहीं है, शुद्धि क्रिया है। ये जो है प्रभु प्राप्ति का मार्ग है, ये हमको समझ लेना है और हमारे प्रॉब्लम हमें दूर करना है। ये साधना पहला सिद्धांत समझती है, समझाती है कि आपका डॉक्टर आप ही हो, आपके प्रॉब्लम आप ही दूर करोगे। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, जैसे कस्तूरी मृग के पास होती है, वो वन में फिरता है मारा मारा, वैसा हमारे ही किचन से रोग आए हैं और किचन में ही उसकी दवा है, बाहर कहीं भी आपको उसकी दवा नहीं मिलेगी। ये पहली बात समझ लो। इसीलिए मेरे प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रहे हैं, इसका जवाब आपको खुद को ढूंढना है। बाहर जो हमारे जैसे लोग हैं आपको केवल मार्गदर्शन करेंगे, आपकी बीमारी दूर नहीं करेंगे। बीमारी दूर करना केवल आपके हाथ में है। गीता में कहा है उद्धरेद आत्मानम आत्मानम उसादयेत, तेरा उद्धार यानी तेरा प्रॉब्लम तू ही सॉल्व कर, तेरे सुख दुख का कारण तू ही है। मुझे जो प्रॉब्लम आए हैं उसको दूर करना है तो एक ही काम करना पड़ेगा, मुझे भगवान की शरण में जाना है और पूरी श्रद्धा से ये साधना अपनानी है।
और जब हम साधना शब्द कहते हैं तो साधना का मतलब होता है जिसे छोड़ना नहीं है। लोग मुझे कहते हैं कि ये डाइट सिस्टम अपना रहे, कितना दिन करें? मैं कहता हूँ कि आप घर को झाड़ू कितना दिन मारोगे? भाई वो तो रोज मारना है। अगर झाड़ू रोज मारना है, स्नान रोज करना है, तो बाह्य स्नान करते हो रोज, तो अंतर्न स्नान कब करना है? कितने दिन करना है? कि रोज करना है। इसलिए साधना का मतलब होता है कि इसको छोड़ा नहीं जाता। और एक बात ध्यान में रखो, मैं बहुत सारे लोगों को समझाता हूँ कि हम नेचर से जुड़ रहे हैं। हम नेचर से जुड़ रहे हैं। तो दुःख दूर करने का काम नेचर करता है। जब भी आप नेचर से जुड़ते हो, तो मुझे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ये बात भूलकर आप नेचर को फ़ॉलो करो, तो आपको रिज़ल्ट 100% मिलेगा। क्योंकि हम फ़ायदा की दृष्टि से अगर ये डाइट करेंगे, तो कभी-कभी हमारा फ़ायदा लेट होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, गलतफ़हमी में जल्दी फ़ायदा नहीं हुआ तो इसको छोड़ देते हैं, और अगर ये सिस्टम आप छोड़ देते हैं, तो दुनिया की कोई भी साधना सिस्टम आपको ठीक करने वाली नहीं है। क्योंकि मैं बार-बार कहता हूँ कि बाकी सभी जो है, ये उपचार पद्धतियाँ हैं, और ये जो है ये शुद्धि क्रिया है। जितनी शुद्धि जल्दी हो जाएगी, उतना आपका फ़ायदा हो जाएगा। ये साधना जो है हमको कुछ बातें समझाती है। पहली तो जो है कि आज की दुनिया की रोगों की जो देन है, इसका कारण है कि 2 बार पकाया भोजन खाओ, सुबह-शाम। तो एक बात ध्यान में रखो कि ये साधना जब शुरू करते हैं, तो 2 रास्ते मैं आपको समझाता हूँ। इसमें से जो रास्ता आपको आसान लगे, आपको करना है। एक तो जो है, दिन में कच्चा, रात में पकाया। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रॉब्लम जाएगा, पर उसके लिए समय देना पड़ेगा। जिसको मैं पैसेंजर ट्रेन कहा है कि भाई गाड़ी में तो बैठो, जब स्टेशन आएगा तब आएगा, तब आपको बैठना है। और दूसरा जो मैंने बात की है कि उसको मैं कहता हूँ एक्सप्रेस, दोनों समय कच्चे पे आ जाओ। और होता क्या है कि हम लोग जो है दूसरों को ध्यान में रखकर उससे तुलना करते हैं। मैं हर एक को कहता हूँ कि साधना अपने अनुभव के अनुसार करो, अपने शक्ति को अनुभव करो, और उस हिसाब से साधना शुरू करो। हर एक के प्रॉब्लम अलग-अलग है, हर एक की समस्या अलग-अलग है। तो ये जो समस्या दूर करनी है, तो अपने हिसाब से साधना शुरू करो। फ़ायदा अपने आप होता जाएगा। अब करना क्या है कि थोड़ा-सा हमको परिवर्तन करना है। सभी लोग क्या कर रहे हैं कि हमारी शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ढूँढ रहे हैं। मार्केट में जाते हो तो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए बहुत कुछ ढूँढा जा रहा है। मार्केट में जाते हो तो बहुत सारे लोग आपको लालच में लाते हैं। मैं कहता हूँ किसी भी लालच में मत आओ। इस साधना को अपनाते हो तो आपके शरीर में जो कमियाँ हैं वो सारी पूर्ति हो जाएगी। सिर्फ थोड़ा संयम रखो, बाकी कुछ मत करो, समय दो। करना क्या है, तो हमारी इम्यून सिस्टम, वाइटल सिस्टम, विल पावर, इसको बढ़ाने के लिए समय दो। शरीर में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको दूर करना है, तो ये 3 पावर हमें बहुत ज़रूरी है। और ये पावर कहाँ से आती है, कहाँ खत्म होती है, और इसको बढ़ाना कैसा है, ये अगर समझ में आ गया, तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाकर अपनी बीमारी दूर करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं, तो जिस डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर होता है डायबिटीज स्पेशलिस्ट, और वो खुद इंसुलिन लेता है। तो एक समझ में आता नहीं है कि जिसके पास आप जा रहे हैं, उसको सवाल क्यों नहीं करते कि आप खुद का डायबिटीज क्योर नहीं कर रहे हो, मेरा कैसे करोगे? इसलिए मैं कहता हूँ कि बाहर की दुनिया में केवल सहानुभूति है, रिजल्ट नहीं है। आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो साधना को अपनाओ। बहुत ईज़ी बात बता रहा हूँ मैं। तो जो इम्यून पावर है, जो विल पावर है, और जो वाइटल पावर है, आपकी अगर मजबूत हो गई, तो आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। तो ये जो है, ये किससे बढ़ती है? ये साधना से बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? अभी आपने देखा कि कोरोना में सभी लोग कह रहे हैं कि जिसकी इम्यून पावर मजबूत है, उसको वायरस कभी तकलीफ नहीं देता। सही बात है, नहीं तो आज दुनिया खत्म हो जाती 1.5 साल में। तो इम्यून पावर क्या काम करती है? तो इम्यून पावर रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाती है। ये आती कहाँ से है? कभी देखा आपने? आज सारी दुनिया डरी हुई है, पर एक भी पशु डरा हुआ नहीं है। कभी देखा आपने पशु को डरा हुआ? किसी को भी बीपी, डायबिटीज नहीं है, ना इसको सर्दी होती नहीं, ना खांसी होती, ना क्लाइमेट उसको तकलीफ देता है, और ना ही उसको कोरोना का डर है। अरे घास खाता है और पर्वत चढ़ के जाता है, तो भी एक पशु थकान महसूस नहीं करता है। हम लोग काजू बादाम से लेकर सभी सभी प्रकार का भोजन करते हैं, और लिफ्ट के बिना 4 मंजिल चढ़ नहीं पा रहे। इसका कारण क्या? इम्यून पावर कमजोर हो गई है, विल पावर कमजोर हो रही है, वाइटल पावर कमजोर हो गई है। इस पावर को बढ़ाना है हमको, इस पावर को बढ़ाना है, और 100 साल हमको जिंदा रहना है बिना दवा के। और ये पावर कमजोर है, इसलिए तो हमको दवा का सहारा लेना पड़ता है। जबकि दवा हमें क्या करती, तो रोगों को दबाती है, उसके सिवा हमारा कुछ फायदा होता नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये इम्यून पावर, विल पावर जब तक बढ़ती नहीं, तब तक रिजल्ट नहीं मिलता है। तो सारे पशुओं के भीतर आपको जो रोग प्रतिकार क्षमता मिलती है, वो नेचुरल फूड खाते हैं, और हम लोग जो है वो मृत भोजन खाते हैं।
अब मृत भोजन के कारण हमारे केवल जीभ को टेस्ट मिलता है पर पेट आगे आता है, शक्ति कहाँ बढ़ती है। मैं बार बार कहता हूँ कि भोजन से वजन है, शक्ति नहीं है। अगर भोजन से शक्ति मिलती तो आज सारे शक्तिशाली लोग, आज सारे पैसे वाले लोग 4 बार ठूस ठूस कर खाते हैं और शक्ति प्राप्त करते हैं। उल्टा देखा जाता है कि ज्यादा खाना खाने वाले ही तो बीमार पड़ रहे हैं। तो रोग प्रतिकार क्षमता जो कम हो रही है, इम्यून पावर जो कम हो रही है, हमारे शरीर में जमा हुए मल के कारण। अब इस मल को दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा? डाइट सिस्टम जो हम रसायन पद्धति समझा रहे हैं, सफाई करना पड़ेगा। तो रोग प्रतिकार क्षमता कब बढ़ेगी? प्राकृतिक भोजन का सहारा लेना शुरू करो। इस पर आएंगे हम, कैसे लेना, क्या लेना। तो इम्यून पावर बढ़ना है तो केवल किसी बाहर के प्रोडक्ट से नहीं बढ़ेगी, वो बढ़ेगी तो घर में जो आप लाते हो प्राकृतिक भोजन, उससे बढ़ेगी। दूसरा जो है विल पावर। विल पावर जो होती है, आप कितना भी अमृत पियो पर आपकी विल पावर अगर कमजोर होगी ना तो अमृत आपके शरीर पर काम नहीं करेगा। हम इतना 4 बार समझाते हैं कि ये रसायन डाइट अगर आप चालू करते हो तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, पर करने वाला कहता है कि कोई सेमिनार हो तो हम आ जाएंगे, वहां पर हमारा होगा। भाई इसका कारण ये है कि आपकी विल पावर कमजोर है। हम बताते हैं कि घर के बाहर दवा नहीं है तो आप बोलते हैं घर के बाहर ही हम आएंगे। आप घर से क्यों नहीं शुरू कर रहे? क्योंकि विल पावर कमजोर है। विल पावर यानी इच्छा शक्ति, आपकी मानसिक ताकत कमजोर है, इसीलिए आज हर एक को साइकोलॉजिस्ट लग रहा है। क्यों आपको जरूरत पड़ रही है? क्यों मानसिक पावर कमजोर है? क्योंकि कर्म अगर सात्विक होंगे तो मानसिक पावर बढ़ेगी, और स्वार्थिक कर्म होंगे केवल स्वार्थ के लिए तो विल पावर कमजोर होती जाएगी। विल पावर बढ़ती है उपवास से, ये बात ध्यान में रखना। जब भी आप उपवास करते हो तो उपवास का पहला महत्व है कि वो विल पावर बढ़ाता है। इसका कारण मैं बात आपको बताता हूँ कि जब हम आपको उपवास बताते हैं तो उपवास बताते हैं तो हम आपको भूखा नहीं रखने वाले। लोगों को लगता है कि हम भूखा कैसे रहेंगे, उपवास में तो कुछ खाना नहीं है। बात सही है, भूखा वो रहता है जिसको खाने को नहीं मिलता है। हमारे पास सभी भोजन सामने पड़ा है पर हमको खाना नहीं मिले। हमको खाना नहीं है, अपने मन को बताना है कि मुझे उपवास करना है। इससे क्या होता है कि मेरे मन के खिलाफ जाकर मैं कुछ बातें करता हूँ तो मेरी विल पावर बढ़ने लगती है। इसलिए उपवास से हमारे मन की ताकत बढ़ती है, इसलिए हमको उपवास करना है। और तीसरी जो बात है, हमारी वाइटल पावर। वाइटल पावर यानी जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति, जो हमारे भोजन को पचाती है। हम कहते हैं ना, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम। 4 प्रकार का भोजन भीतर बैठी जीवनी शक्ति वाइटल पावर पचाती है। भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य, ये 4 प्रकार का भोजन पचाती है। अब ये जो जीवनी शक्ति है ये कमजोर किस कारण हो गई है? ये एसिड के कारण हो गई है। ये क्या हो गई है? ये कमजोर हो गई है। इसको अगर पावरफुल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? शुद्धता करनी पड़ेगी। तन की शुद्धता, मन की शुद्धता, धन की शुद्धता, आत्मा की शुद्धता, ये बहुत सारी शुद्धता हमें करनी है। तो ये शुद्धता ये डाइट सिस्टम समझाती है। इसलिए मैं इसे कहता हूँ ये प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। ये सागर से गहरी है, आकाश से बड़ी है। इसको आप सीमित मत समझो। जितना आप आगे बढ़ोगे उतना आपको मिलता जाएगा। मेरी बुद्धि छोटी है इसलिए मुझे ज्यादा मालूम नहीं है। जितना गहरा अभ्यास करोगे उतना बुद्धि को मिलता जाएगा, और मैंने इसमें से बहुत पा लिया है। मैं हर एक को कहता हूँ कि ये जो पावर आपको बढ़ानी तो क्या करना पड़ेगा? कुछ भगवान ने बताए हुए रास्ते से चलना पड़ेगा। अगर दुनिया में हजारों वायरस है तो डरो मत, बिल्कुल डरो मत। एक बात ध्यान में रखो, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि लोगों को लगता है ये बीमारी खत्म हो गई तो हम अच्छा जिएंगे। नहीं, दूसरी तैयार है, तीसरी तैयार है। समस्या कभी खत्म नहीं होती है। एक आदमी के पास बहुत सारे ऊंट थे। रात हो गई, उसको लगा कि अभी एक एक को मैं नीचे बैठाता हूँ, सब बैठ गए कि मैं सो जाऊंगा। वो 2 4 3 5 6 को बिठाता तो उसमें से पहला फिर उठ खड़ा होता, फिर ऐसे आगे दूसरों को उनको बिठाता तो फिर पहला दूसरा फिर खड़ा हो जाता। ऐसा करते करते पूरी रात गुजर गई पर सारे ऊंट नीचे नहीं बैठे, उसको सोने को नहीं मिला। वैसा ही हमारे साथ होता है। हमें लगता है चलो ये रोग चला जाएगा तो हम एंजॉय कर पाएंगे। अरे वो खत्म नहीं होता तो दूसरा खड़ा होता है, तीसरा खड़ा होता है। ये रोगों को दूर करते करते हमारी पूरी जिंदगी बीत जाती है, रिजल्ट नहीं मिलता है। ऊपर से कितने सारे लोग हमको इतना कंफ्यूज करते हैं, कब खाए, क्यों खाए, कितना खाए, कौन से कैल्शियम मिलता है, कौन से प्रोटीन मिलता है। पूरा दिमाग खराब हो गया है। इतने सारे प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं हमारे फैमिली प्रॉब्लम्स में, और उसमें से ये रोगों की प्रॉब्लम। मुझे बताओ कैसे कैसे जीना है? इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये साधना को श्रद्धा से अपनाओ, सारे बोझ उतार दो। तो भगवान ने बताया है कि अगर वायरस है तो एंटीवायरस भी इसको अपनाओ, आपकी पावर बढ़ेगी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्ता प्रयश्यति तदम भक्ति परतम अष्टनामी प्रयतात्मना। भगवत गीता में 90वें अध्याय में सभी 7 श्लोक भगवान ने 5000 साल पहले ही बताया है कि अगर आप प्यार से, भक्ति भाव से पत्तियां, फूल, फल और जल
मुझे अर्पण करते हो तो मैं स्वीकारता हूँ। अरे आप बाहर के भगवान को, भगवान शिव को बेल की पत्तियां अर्पण करते हो, तो कभी भीतर बैठे हुए भगवान को देखकर देखी? अरे बाहर हम कहते हैं कि अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास है। कभी जूस में डाल के देखा? भगवान को हम शिव और गणेश जी को हम दुर्वा डालते हैं, तो कभी हमने हमारे जूस में दुर्वा डाल के देखा? अनुभव करो, सारे रोग आपके दूर हो जाएंगे। यही एंटीवायरस है, पर ये एंटीवायरस कभी अपनाया? ये सारा पशु जो है, ये सारा एंटीवायरस अपनाता है और हम नहीं अपनाते। अरे 2-3 ग्लास भी हमने पीते दिन में, तो कैसे हमारे वायरस चले जाएंगे? कैसे इम्यून पावर बढ़ेगी, वाइटल पावर बढ़ेगी? अब ये जो पावर होती है, ये कहाँ खर्च होती है, कभी सोचा आपने? हम बूढ़े जो जल्दी बन रहे हैं, इसका कारण ये है कि हमारी जो पावर्स है वो कम होती जा रही है। जब हम 21-22 साल के थे, उस वक्त की पावर और आज हम 50-60 के आगे चले गए, उस वक्त की पावर सेम नहीं है, ये कमजोर होती जा रही है। तो हमें स्वस्थ रहना है तो इस पावर को बचाना होगा। अब ये बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? सीधा है, ये जाति का है, इसको समझना पड़ेगा। जब भी हम सवेरे उठते हैं, देखो आप जब मोबाइल को लगाते हो चार्जिंग के लिए, जब चार्जर लगाते हो, तो जिस वक्त आपने चार्जर को निकाला, उस वक्त से क्या हो गया? मोबाइल डिस्चार्ज होना चालू हो गया। उसी प्रकार सुबह जब आंखें खोलते हैं, जैसे ही आंखें खोले हम परमात्मा से अलग होते हैं। अलग होते हैं इसका मतलब हम जो नींद में जुड़े हैं वो अलग होते हैं। तो क्योंकि परमात्मा से अलग होंगे तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो इसका कारण मैं बताता हूँ, जब हमने आंखें खोली हम डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, बॉडी डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। हम जो काम करना शुरू करते हैं तो शारीरिक मेहनत करते हैं, उससे हमारी पावर कम होती है। उससे ज्यादा पावर जो कम होती है, क्योंकि हम जब शारीरिक काम करते हैं तो थकान महसूस करते हैं, और इस थकान में क्या होता है कि हम कहते हैं ना कि बहुत थकान हो गई है, आराम करो, है ना? तो ये शारीरिक मेहनत करते हैं तो इम्यून पावर, वाइटल पावर कमजोर होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात, जब हम ऐन्द्रिक भोग लेते हैं, जैसे आंखों से देख रहे, कानों से सुन रहे, मुंह से बोल रहे, तो इससे हमारी एनर्जी बहुत लॉस होती है। जब हम बोलते हैं ना कि 1 घंटा बोलने के बाद अब हमें किसी का सुनने की या किसी के बोलने की, किसी से बोलने की एनर्जी नहीं रहती है, तो ये क्या हो गया? हमारी पावर लॉस हो गई। तीसरी बात, जब भी हम क्रोध करते हैं किसी के ऊपर, तब भी हमारी पावर लॉस हो जाती है। अगर हम जब गुस्सा करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है हम किसके सामने बात कर रहे हैं, कौन हमारी बात सुन रहा है, हम सब भूल जाते हैं। तो जब क्रोध आता है तब क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृतिभ्रमात्, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विनाश अटल है। तो ऐसा क्रोध जब आता है तब अटैक भी आ सकता है। तो क्रोध में क्या होता है? एनर्जी लॉस होती है। चौथी बात क्या है? चिंता। जितना हम चिंता करते हैं, तो चिंता करने वाले जो लोग होते हैं वो कभी ठीक नहीं होते। हम जब डाइट शुरू कर देते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चिंताएं होती है कि फायदा होगा क्या, कर पाऊंगा क्या, चक्कर आ गई तो, कुछ हो गया तो। अरे क्यों चिंता करते हो? शुरू तो करो। अरे ट्रेन भी ट्रैक बदलती तो खड़खड़ करती, या 2-4 दिन खड़खड़ हो गई, तो इसमें डरने की क्या बात है? तो जो चिंता है वो इंसान को खत्म कर देती है। मैं हर एक आदमी को एक उदाहरण देता हूँ कि जब कोई बैलगाड़ी चलती है तो उसके नीचे एक कुत्ता चलता है, तो उस कुत्ते को लगता है कि ये जो बोझ है ना, ये मैं लेकर चल रहा हूँ। उसी प्रकार हम जो पूरी जिंदगी जीते हैं ना, हमें लगता है कि ये जो है ना हमारे सिवा चल नहीं पाएगा, ये बोझ लेकर हम जीवे। इस बोझ को उतारो, चिंता छोड़ो, सब प्रकार की चिंता भूल जाओ, जो होना है वो होने ही वाला है, डरो मत। तो ये जो चिंता होती है, चिंता के कारण हमारे बॉडी में वैसा केमिकल बनना शुरू हो जाता है, और वो केमिकल जो होता है हमें फायदा नहीं देता है। इसीलिए शुरू करते हैं डाइट तो हम चिंता भूल जाओ। इसमें हमारी एनर्जी लॉस होती है। उससे ज्यादा हमारे अहंकार में एनर्जी लॉस होती है। अहंकार अगर हमारा टूट गया तो उसमें हमारी एनर्जी लॉस होती है। और उसके बाद जब हमारा वियोग होता है, हमारे पैसे की हानि होती है, हमारा मित्र चला जाता है, हमारा अपना कोई जो हमारा संबंधी वो चला गया, तो भी हमारी एनर्जी लॉस होती है। ऐसे वक्त के कोई लाडला अगर चला गया तो हमारी एनर्जी लॉस होती है, हमें भी हार्ट अटैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इतना सारा दिन में कितनी बार होता है, कभी याद करते हो आप? सुबह उठने से रात के सोने तक हमारे साथ ये कितने बार होता है? बहुत बार होता है। तो सुबह से रात तक हमारी एनर्जी लॉस हो रही है। और उसके साथ और एक बात, जो हम खाना खाते हैं उससे पाचन, पोषण, निष्कासन, ये 3 बातें हमारे बॉडी में करना पड़ता है। तो जब भी हम पकाया भोजन खाते हैं तो 14 घंटे हमारी एनर्जी उसको पचाने में लग जाती है। तो ये 14 घंटे हम उसमें व्यर्थ गवाते हैं। तो मुझे बताओ, केवल डिस्चार्जिंग चालू है, चार्जिंग कहाँ है? चार्जिंग तो कर नहीं रहे। इसीलिए मैंने कहा कि चार्जिंग करना है तो पहले आपको एक ही काम करना है। 100 साल तक हमें निरोगी रहना है, स्वस्थ रहना है, एक ही काम करना है, इस पावर को चार्ज करने के लिए न्यू डाइट सिस्टम का अपनाना है।
तो इम्यून पावर बढ़ेगी प्राकृतिक आहार से, विल पावर बढ़ेगी आपकी सेवा से, सुमिरन से, और वाइटल पावर बढ़ेगी शुद्धता से। अब ये कैसे करनी है? अब अगर आपको ये करनी है तो आपको ये रास्ता अपनाना पड़ेगा। जब भी आपको किसी रोग को लड़ना है तो रोग को लड़ने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा, दवाओं को भूल जाओ। दवा ले रहे हो तो हम मना नहीं कर रहे, क्योंकि इमरजेंसी में दवा जरूरी है, और एकदम से दवा छोड़ना है तो जिसकी विल पावर मजबूत है वो छोड़ सकता है, बाकी लोग जो है वो धीरे धीरे दवा को छोड़े, एकदम शॉर्ट ट्रीटमेंट कभी मत ले। तो दवा क्या काम करती है मैंने तो पहले भी बताया हर एक वीडियो में, सिंपल है। आपके घर में अगर आप खाना खाए और खाना आपका बच गया, और अगर किसी बर्तन में वो खाना रह गया और 2 दिन गांव में चले गए, तो आकर आप देखते हैं तो उस बर्तन में आपको क्या दिखाई देगा? कीटाणु दिखाई देंगे। कीटाणु क्यों आ गए? क्योंकि वो खराब हो गया। वो खाना तो अच्छा था, खा लेते तो चल जाता, और वो बच गया। अब खाना बच गया तो उसको बदबू आ गई, उसको कीड़े आ गए। अब आप क्या करोगे? कीड़ों को मारने के लिए दवा लाओगे या बर्तन को साफ करोगे? अगर आप कीड़ों को मारने के लिए दवा लाओगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि कीड़े फिर से आएंगे। कीड़े तब तक है जहां कूड़ा है वहां कीड़े है। कीड़े तब तक है जब तक कूड़ा है, भगवान ने भेजे हुए सफाई के वो कर्मचारी है। तो कीड़ों को मारने में क्या होगा? पैसा व्यर्थ जाएगा, समय व्यर्थ जाएगा, दवा की बर्बादी होगी और सबकी बर्बादी हो जाएगी। आसान काम करो, बर्तन को धो डालो। अब बर्तन को धो डालो, वहां कचरा नहीं है, अब बताओ वहां कीटाणु आएंगे? तो वो बर्तन धोते हो तो कीटाणु चले जाते हैं। तो इस बर्तन को कभी धोया आपने? इस बर्तन को तो आपको धोने के लिए समय नहीं है। फिर कहते हैं कि नहीं 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। अरे आपके बर्तन में कूड़ा ज्यादा है तो चालू रखो ना, साधना छोड़ते क्यों? तो बर्तन को धो। दवा केवल इंडिकेशन को दूर करने का काम करती है। मैंने बताया है कि जब भी कभी अग्निशामक की गाड़ी घंटी बजाते हुए चली जाती है तो आपको तुरंत समझ में आता है कहीं तो आग लगी है। तो घंटी बंद करने से आग नहीं बुझने वाली, सिंपल है। उसी प्रकार हमारे भीतर रोगों की आग लगी है। तो दवा खाने के बाद आपको लगता है किसी दवा लेने के बाद कि अभी मुझे अच्छा लग रहा है, भैया आपने इंडिकेशन को बंद किया रोगों के, प्रॉब्लम दूर नहीं होगा आपका। एक ही काम करना है, दवा बगैर आपको रहना है तो दवा में जो कुछ है उससे बहुत ज्यादा भगवान ने दिया हुआ दवाई में है। जो प्राकृतिक आहार है वो भगवान ने दी हुई दवाई है, उसको अपनाओ, श्रद्धा से अपनाओ। जब भी कोई बीमारी आती है तो हम क्या करते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारी बीमारी दूर करो। मैं मजाक में कहता हूँ कि अरे जिसके पास वो डिपार्टमेंट नहीं है तो वो आपको कैसे ठीक करेगा? अगर पुलिस का काम है तो पुलिस ही करेगी, डॉक्टर का काम है डॉक्टर करेगी। आप पुलिस के पास डॉक्टर का काम लेकर जाओगे तो वो पुलिस थोड़ी आपको ठीक करेगा। तो ये जो साधना है, ये जो समझा रही है कि ये जो डिपार्टमेंट है भगवान के पास नहीं है, स्वास्थ्य का डिपार्टमेंट वनस्पति के पास है। हरे ऋषि मुनियों ने किससे स्वास्थ्य मांगा है? आयुर्बलम यशो वर्चा प्रजा पशु वसुनिच ब्रह्म प्रज्ञाच मेधांच वन्नो देहि वनस्पते। हे वनस्पति, हमें तू आयुष्य, आरोग्य, बल, वैभव, समृद्धि, शक्ति दे। भगवान के पास नहीं मांगा, क्यों? क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है गामा विश्व भूतानि धारयाम्य मोजसा उष्णामि चौषधि सर्वा सोम भूत्वा रसात्मका। चंद्र प्रकाश द्वारा सभी वनस्पतियों में मैंने औषधि डाल के रखी है, तो भाई तू उसके पास जाना। तो मुझे बताओ कि हम पूरी श्रद्धा से ये वनस्पति का आहार लेते हैं? कितना सारा मिक्स करते हैं हम। तो इसका परिणाम क्या होता है कि हमारी श्रद्धा नहीं है। अब सिद्धांत कहता है कि श्रद्धा नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो रिजल्ट तो आपके पास है, हमारे पास थोड़ी है। हम श्रद्धा से कर रहे हैं। 6 साल में 6 साल में आज तक मैंने किसी से भी एक भी सवाल नहीं किया है। अगर किसी से किया होगा तो बताओ मुझे, कोई होगा तो। मैंने जब ये साधना को अपनाया तो मुझे प्रिंसिपल समझ में आ गया कि तेरा ही तेरे हाथ में है। तुझा है तुझा पाशी परी तू सागा तुकलाशी, तेरे ही पास सब कुछ है, सिर्फ तुझे ढूंढना है भीतर जाकर। तू बाहर ढूंढ रहा है, तू सवाल पूछ रहा है। अरे साधना इतनी आसान है, ये किताब में मैंने सब कुछ समझाया है, क्यों बाहर ढूंढ रहे हो? इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत इजी है, वनस्पति आहार के शरण में जाओ, बाकी चिंता छोड़ दो। जब बीमारी दूर होनी है तब होगी, क्योंकि बीमारी जो होती है हमारे कर्मों का भी फल होता है, भुगतना पड़ता है, वो दूर हो जाएगी। थोड़ा संयम रखो, क्योंकि बीमारी भी एक्यूट डिसीज, क्रोनिक डिसीज, अनक्यूरेबल डिसीज 3 प्रकार होते हैं। तो जो एक्यूट डिसीज है जल्दी ठीक हो जाएंगे, जो क्रोनिक डिसीज है उसको थोड़ा समय लगेगा, अनक्यूरेबल डिसीज को और समय लगेगा। समय दो। अब समय देना है मतलब क्या करना है? तो पहले तो हमको भगवान के रास्ते पर श्रद्धा रखनी है, भरोसा रखना है, और थोड़ी सी हमको दिनचर्या बदलनी है। अब ये जो दिनचर्या बदलनी है तो ये कैसे बदलनी है, ये क्या करना है? थोड़ा सा रास्ता समझो।
આ બંધ કરી દે ને જવાનું दिशा बदलनी है, आपको दिशा बदलनी पड़ेगी। ના મારો ફોન તો दिशा આવ્યો बदलनी है तो क्या એ करना પેલું पड़ेगा? કવર પડી रास्ता बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा भरोसा भगवान पे रखकर रास्ता बदलो। आज तक जो करते आए अभी थोड़ा उल्टा करो। जिसको आप उल्टा मानते हो यही सीधा है। करना क्या है? बेटा वो पानी भरवा करना क्या है? तो ये साधना के सिद्धांत आपको समझने हैं कि जितना आप कच्चे पे आ जाओगे उतना आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। उतना result ले ले थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहो, थोड़ा सा अपने हिसाब से सिस्टम को अपनाओ। सुबह उठने की बाद की जो दिनचर्या है वो थोड़ी समझ लो। सुबह उठने के बाद आज तक हम क्या करते आए, क्योंकि हमको बताया ही गया है ऐसा कि सुबह उठने के बाद पहला पानी पी लो, बहुत सारा पानी पी लो, पानी से पेट साफ हो जाता है। अरे पानी से पेट साफ होता तो सारे पशु पहले पानी पीने को दौड़ते। यह आपकी गलतफहमी है कि पानी से पेट साफ होता है। सबसे पहला करना क्या है, तो सुबह उठने के बाद होता है उतना उपवास करो। हम लोग जो कहते हैं कि 8 घंटा पचाना, 8 घंटा खाना, 8 घंटा डाइजेस्टिव, 8 घंटा उपवास, ये जो 3 हमने समझ दिए हैं, 8 घंटा पचाना, निकालना और खाना। तो आप 24 घंटे के 8-8 घंटे जो है अपने हिसाब से कीजिए। सुबह 4 से लेकर जो हमने 12 बजे तक का टाइमिंग दिया है वो फास्टिंग का टाइमिंग है। तो सुबह जब आप उठते हो, आप कभी भी उठो, कोई परेशानी नहीं है, पर कम से कम होता है उतना उपवास तो करो। हर एक की शक्ति अलग अलग है। मैंने पहले कहा कि हर एक की वाइटल पावर अलग अलग है। जो पावर बच्चों में होती है, युवा में होती है, वो बूढ़ों में नहीं होती है। हर एक की पावर अलग अलग होती है। अपनी पावर को अनुभव करो कि मैं कितने बजे तक उपवास कर सकता हूँ। सुबह उठने के बाद मैं 2 घंटा कर सकता हूँ, 3 घंटा कर सकता हूँ, 6 घंटा कर सकता हूँ, क्योंकि ये साधना, ये कोई कोर्स नहीं है। इसको कोर्स मत समझो। फिर कहता हूं कि हम जो कहते हैं हजारों लोगों को सामने रखकर बात करते हैं, इसीलिए कहा कि हर एक की प्रकृति अलग है, श्रद्धा अलग है, रोग अलग है। आप अपने हिसाब से उपवास कीजिए। मेरे भीतर स्टॉक कम है, मेरा वजन कम है, तो मुझे जितना सहन होगा उतना करूंगा। बाकी लोगों का वजन ज्यादा है तो उसका स्टॉक बहुत है तो वो ज्यादा कर सकता है। जिसकी विल पावर ज्यादा है वो ज्यादा उपवास करता है। तो ज्यादा उपवास कीजिए या कम कीजिए, अपने हिसाब से कीजिए, किसी से तुलना मत कीजिए। मैं बार बार कहता हूं। तो सवेरे उठने के बाद होता है उतना उपवास कीजिए। शास्त्र कहता है लंघनम परम औषधम। लंघन यानी उपवास सभी रोगों के ऊपर दवा है। बाहर का आदमी नोबेल पारितोषिक प्राप्त करता है उपवास पर लेख लिखकर, और हमारे संस्कृति ने हजारों साल पहले ही उपवास दिया है कि भाई उपवास कर। इस उपवास के दिन आपको एक ही करना है, फलाहार करना है, और हम उस दिन फराळ करते हैं। ये अपभ्रंश है। बहुत सारा खाते हैं, एकादशी और दुप्पट खाशी। अरे उस दिन आपको आराम देना है आंतों में। उपवास में आंतों को आराम मिलता है। आहारम पचति शीकी दोषान आहार वर्जित। इसका मतलब ये है कि जब आप खाते हैं तो उसको भोजन को पचाने का काम हमारी वाइटल पावर करती है, पर जीवनी शक्ति करती है। पर उसको अगर आप खाने को नहीं दोगे तो आपके दोषों को वो खत्म करती है। तो आपके भीतर कोई भी दोष हो, सरदर्द से लेकर बदन दर्द से लेकर कोई भी बीमारी हो, तो सबसे पहले एक ही काम करना होता है, उतना उपवास करना। अब मैं फिर कहता हूं, जितना सहन होता है उतना करो। अब ये जो उपवास होता है ये केवल तन से नहीं चलेगा। समस्या कब आ रही है, क्यों आ रही है, उपवास क्यों नहीं कर पाते? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमें उपवास करते हैं तो तकलीफ होती है, चक्कर आता है, थकान महसूस होती है, कमजोरी होती है। होगी भाई होगी, शुरुआत है आपकी। शुरुआती में थोड़ी सब कुछ होने वाला है। काजू बादाम खा गए और ताकत आ गई, ऐसा थोड़ी होता है। समझ दो सब बात को। इसलिए मैंने कहा संयम रखो। अगर आपको ऐसा होता है तो इससे डरना नहीं, क्योंकि उपवास में हमारी जीवनी शक्ति सफाई कर रही है। जब भी उपवास करते हो तब जीवनी शक्ति हमारे सफाई पर केंद्रित हो जाती है। इसीलिए हमको उल्टी हो सकती है, लूज मोशन हो सकते हैं, सरदर्द हो सकता है, चक्कर भी आ सकता है। शुरुआत में ऐसा होगा तो थोड़ा आराम करो, 2-4 दिन होगा, उसके बाद नहीं होगा। क्योंकि जब आपको लगता है कि सुबह खाएंगे नहीं तो हमें चक्कर आ जाएगा, और जब आप खा लेते हो तो आपका सरदर्द या जो भी कुछ है वो रुक जाता है। बहुत सारे लोगों का अनुभव है कि उपवास नहीं करते और कुछ खा लेते हैं सुबह सुबह तो हमें तकलीफ नहीं होती। इसका कारण यह है कि उपवास जब करते हो तो सफाई करती है जीवनी शक्ति, पर जब कुछ खा लेते हो तो हमारी जीवनी शक्ति सफाई छोड़ देती है। सफाई छोड़ देती है और वो खाने के बाद हमें लगता है कि हमें शक्ति मिल गई, क्योंकि वो शक्ति पचाने के पीछे पड़ती है। तो यह हमारा भ्रम है, इसको पहला दूर करो। सुबह उठते ही होगा उतना उपवास करो, उसके बाद कोई तकलीफ नहीं होगी। और हम जी कर दिखा रहे हैं, 6 साल हो गए हम जी रहे हैं, कोई भी तकलीफ हमें नहीं है। जब भी हमारी बीमारी आ जाती है
कोई भी बीमारी, मुझे बुखार आया तो मैंने करके दिखाया था, 2 दिन तक मैंने पानी की बूंद भी नहीं ली। अरे हम यही तो अनुभव के साथ जी रहे हैं, केवल सलाह देने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। आज मैं कोरोना के काल में लोग घर में बैठे थे, पता नहीं मुझे कितने लोगों ने बाहर काम किया है। 115 गाँव में गुजरात में मैं ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करके दिखा कर आया, ना मास्क लगाया ना सैनिटाइज। इसका कारण ये है कि हम अगर नेचर को फॉलो कर रहे हैं तो हमें डरने की क्या आवश्यकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सिद्धांत को समझो। उपवास आपके सफाई के लिए, आपके शक्ति को बढ़ाने के लिए, विल पावर को बढ़ाने के लिए है। इस उपवास में मन को भी आपको पावरफुल रखना है। आपके सामने भोजन पड़ा है पर खाना नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप मंदिर में जाते हो तो बाहर कछुआ देखते हो। कछुआ जो है ना वो संयम का, इंद्रिय निग्रह का प्रतीक है। ये बात ध्यान में रखो। तो यही इंद्रिय निग्रह हमें करना है कि मेरे पास सामने पड़ा है पर मैं खाऊंगा नहीं, तो मन से भी नहीं खाऊंगा। अगर आपको सामने दिख रहा है, मुंह को पानी आ रहा है, तो इसका मतलब आपने मन से खा लिया, तो ये उपवास नहीं है। इसका शरीर पर असर होता है, क्योंकि आपके मन में अगर क्रोध आ गया तो बॉडी बॉडी के ऊपर उसका असर होता है। आपके मन में अगर खुशी आ गई तो शरीर पर असर होता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि फायदा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उपवास में आपका मन भोग रहा है, और जब मन भोगता है तो शरीर ने भी भोग ले लिया। इसलिए मैं कहता हूं कि मन से भी आपको खाना नहीं है, ये उपवास है। क्योंकि हमारे शरीर में हजारों कोशिकाएं हैं, और ये हजारों कोशिकाएं आपके मन के ऊपर आधारित है। जैसा मन में आएगा वैसा ही वो कोशिकाएं बनेगी। इसीलिए आपको अगर फायदा चाहिए तो पहले आपके मन को, विल पावर को पावरफुल बनाओ। यस, मैं करूंगा और मेरे लिए करूंगा, और मुझे स्वस्थ रहना है, भगवान के काम के लिए करना है। बॉडी इज अ टॉकिंग एंड वॉकिंग टेम्पल ऑफ गॉड। ये भगवान का चलता बोलता मंदिर है। मेरे घर की सफाई मैं करता हूँ, मेरे गाड़ी की सर्विसिंग मैं करता हूँ, मेरे बॉडी की सर्विसिंग क्यों नहीं करता हूँ? और फिर दूसरों को दोष देता हूँ कि मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मुझे बीमारी क्यों नहीं जा रही? इसका कारण ये है कि हम साधना को पूरी श्रद्धा से, प्योरिटी से समझ नहीं रहे हैं। हमको सेवा और सुमिरन के लिए ये शरीर को संभालना है। तो जब भी आप उपवास करते हो तो आपको तकलीफ होगी, तो इससे डरना नहीं है। समझ लेना कि आपको रिजल्ट मिलना चालू हो गया। जितनी ज्यादा तकलीफ होगी उतना समझना फायदा ज्यादा होने वाला है, तो इसमें डरो मत। तो कम से कम होता है उतना करो। अगर आपसे 10 घंटा होता है तो 10 करो, 2 घंटा होता है तो 2 करो, पर ध्यान में रखने का उसमें पानी की बूंद भी नहीं लेने का। सिद्धांत क्या है कि पानी की बूंद भी नहीं लेने का। बाकी आप कितना घंटे करते हो ये मायने नहीं रखता, आगे जाके आप आगे बढ़ोगे। तो उसके बाद एक ही काम करना है, जब भी आपको उपवास तोड़ना है तो उपवास तोड़ते वक्त हरी पत्तियों का जूस आपको लेना है। ये बहुत जबरदस्त एंटीवायरस है। जिस घर में ये एंटीवायरस होगा ना, उस घर में बीमारी अंदर एंट्री नहीं करेगी। ये बात ध्यान में रखना। तो हरी पत्तियों का जूस जो है, अब हरी पत्तियों में कौन सी बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ पालक ज्यादा मिलती है, 12 महीना मिलती है, पालक का जूस सबसे बेहतर है। पर जो आदमी जिस देश में रहता है उस मिट्टी में जो पत्तियां आती है वो पत्तियां उसके लिए औषधि है। ये बात ध्यान में रखो। जहां जहां जिस जिस देश में जो भी फल है, जो भी वेजिटेबल्स है, वो अपने लिए औषधि है, उसको ज्यादा महत्व दो। ना कि तुलना करो मैं यह पालक ले रहा हूँ वहां क्या नहीं, जो मिलता है उसका जूस बनाओ। तो हरी पत्तियों में हरी पत्तियां ही मिक्स करो। हरी पत्तियों में जो पालक हम यहाँ बताते हैं उसमें सेंधा नमक इस्तेमाल करो। सेंधा नमक है, आयोडीन वाला नहीं इस्तेमाल करना। तो पालक की पत्तियां 250-300 ग्राम, जितनी ज्यादा लेना है उतनी लो। आप कितने लोगे उस हिसाब से आप करो। रेसिपी क्या बताओ, रेसिपी अपने हिसाब से करो। जितनी पत्तियां लेना है 250-300 ग्राम पत्तियां लो, सेंधा नमक, हरा धनिया, पुदीना, अदरक, नींबू, और जो भी डालना है, आंवले वगैरह डालना है डाल सकते हो। पर आंवला नहीं मिलता है तो फिर आप क्या करें? तो कोई बात नहीं, जो मिलता है वो डालो, पत्तियों के पीछे पड़ो। तो जितना हो सकते हैं नेचुरल लो। नेचुरल लेना है तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो हरी पत्तियों का जूस जो है, इसमें वायु तत्व होता है। हमारे शरीर में प्राण, अपान, उदान, व्यान समान 5 प्रकार की वायु है। अगर ये कुपित होते हैं तो गोबर बनेगा, गैसेस बनेगी, गंदगी बनेगी। और ये पावरफुल बनते हैं तो रोग चले जाएंगे। आज 90% लोगों को कब्ज की बीमारी है, ये वायु के कारण है। और ये वायु पावरफुल करना है तो हरी पत्तियों का जूस ले लो। किसी भी जानवर को आप कब्ज की शिकायत नहीं देखोगे जो घर घर में यहाँ पर है। ये जो गोबर बढ़ेगा तो गैसेस बढ़ेगी, तो गोबर बढ़ेगा तो वात बढ़ेगा, वात बढ़ेगा तो शरीर में ज्वाइंट पेन बढ़ेंगे, कहीं भी दर्द हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि गैसेस को निकालो, गोबर को निकालो। तो गोबर बनता है पकाए भोजन से। एक थोड़े दिन पकाया भोजन बंद नहीं कर सकते आप? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं कहता हूँ एंजॉय करना है तो पहले गाड़ी सर्विसिंग तो करो। भगाने को किसने मना किया है? भगाओ बाद में, पर पहले खाली करो। बर्तन खाली करना है हमको, बर्तन खाली करना है। तो हरी पत्तियों का जूस है, उसमें क्लोरोफिल होता है जिससे स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, डेंगू, वायरल इन्फेक्शन,
और कोई भी कोरोना जैसा वायरस से डरने की मुझे नहीं आवश्यकता लगती है। जिसकी श्रद्धा है उसको जरूर फायदा हो जाएगा। मैंने यही काम किया है, मेरे फैमिली में यही काम चल रहा है। हम लोग जूस पीते हैं हरी पत्तियों का, हम किसी से नहीं डरते। अब लोग जो होते हैं वो अलग अलग प्रयोग करते हैं। मैं कहता हूँ अलग अलग प्रयोग अभी मत करो। आप शुरुआत कर रहे हो, प्रयोग बाद में करो। जब आप 6 महीना इस साधना में टिकोगे उसके बाद प्रयोग करो। जोश में आकर प्रयोग मत करो। अभी जो इजी मिलता है ना उसका जूस लो, फिर उसके बाद जो भी पत्तियां डालनी है वो कोई भी पत्तियां धीरे धीरे डालो। तो लोगों को तुरंत ही रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा। शुरू करो धीरे धीरे, 1% 2% से लेके 100% तक जाओगे। तो हरी पत्तियों का जूस जो है बनाकर रख सकते हो, 3 घंटा टिकता है। 3 घंटे के बाद लेने की आवश्यकता नहीं। कहीं जॉब पर जाते हो तो बॉटल में लेकर जाओ। अब बहुत सारे लोगों का सवाल है कि ड्यूटी पर जाते हैं तो पालक का जूस नहीं ले जा सकते, तो ऐसे समय क्या करें? तो भाई नींबू पानी ले लो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फल खा लो, क्या फर्क पड़ता है? मैं लोगों को समझाता हूँ, अरे आप जैसा करना है वैसा करो, पर शुरू तो करो, नेचर से जुड़ तो जाओ। धीरे धीरे आपको रास्ता मिल जाएगा। एक बात ध्यान में रखो, भगवान ने 2 शक्तियां इंसान के भीतर दी है। पहली है देवदत्त शक्ति। देवदत्त शक्ति का अर्थ यह होता है कि हर एक के पास ये शक्ति है, हर एक के पास शक्ति है। सिर्फ उसको प्रामाणिकता से फॉलो करो। आप कोई भी काम करते हो तो प्रामाणिकता से फॉलो करो। आपकी प्रामाणिकता देखकर भगवान उसकी शक्ति हमें देता है, उसे कहते हैं वासुदेव शक्ति। यह शक्ति कब मिलती है? जब आप ईमानदारी से साधना करते हो। इसलिए मैं कहता हूँ रिजल्ट कब मिलेगा? आप अपनी देवदत्त शक्ति का इस्तेमाल करो, ईमानदारी से साधना करते जाओ, भगवान उसकी शक्ति आपको दे देगा। चिंता मत करो, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, पर साधना छोड़ो मत। अब दिन भर क्या करो, हरी पत्तियों का जूस पीने के बाद अगर भूख लगती है तो कोई भी सीजनल फल खाओ। अब कौन सा फल खाओ? कोई भी खाओ जो सीजनल है, रीजनल है, सभी फल चलेंगे। और ये जो फल है जितना चाहे उतना खाओ। मैं लोगों को कहता हूँ आपका केवल चूल्हा बंद किया है, खाना बंद नहीं किया है। क्यों डरते हो? अरे घास खाकर बैल इतना काम करता है और आपको तो हमने केवल खाना ही बताया है। कौन सा हमने खाना बंद किया है? केवल चूल्हा बंद किया है। क्या थोड़े दिन चूल्हा बंद नहीं कर सकते आप? कर सकते हैं। गैस बंद करो, बाहर का अग्नि बंद करो, अंदर का अग्नि प्रज्वलित हो जाएगा। और अंदर का अग्नि अगर प्रज्वलित हो गया तो आपने 2 रोटी खाई कि 4 रोटी खाई, कोई मायने नहीं रखता। हम बार-बार कहते हैं कि भट्टी तप गई तो लोहा पिघलता है, नहीं तो कागज भी धुआं निकलता है। हमारे भीतर की भट्टी को तपाना है तो इसकी सफाई पे समझ दो। क्या खाऊं, कौन सा खाना खाऊं, छोड़ दो। ये सारे यूट्यूब के जो लेक्चरर है, मुझे नहीं पता इनको आपने के दुखों से कितना मतलब है। सारे भावनाओं से खेलते हैं। हम उनको सवाल करते हैं, जवाब आता है ये करो, वो करो, वो करो, किसी को कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि शॉर्ट के पीछे मत पड़ो। ये जो साधना है, साधना करो, साधना से फायदा होगा। तो दिन में कौन सा फल खाना है? कोई भी फल खाओ। फलों में फल खाओ, पर एक साथ 10-12 फल मत खाओ। एक आध 2 फल खाओ तो ज्यादा फायदा होता है। पर रंगे बिरंगी डिश खाओगे तो पचन करने में थोड़ा तकलीफ अंदर की शक्ति को होता है। तो 1-2 फल ज्यादा खाओ। मतलब सफरचंद खाते हो, सेब, एप्पल, तो 4 खाओ, कौन मना करता है? पर 4 प्रकार के अलग अलग फल एक साथ थोड़ा सा अभी मत खाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ो। और पत्तियों में फल इस्तेमाल मत करो, पत्तियों में वेजिटेबल इस्तेमाल मत करो, क्योंकि हर एक का तत्व अलग अलग है। अब शाम के वक्त 5 से 6 बजे तक आपको भूख लगेगी तो वेजिटेबल जूस ले लो। वेजिटेबल में आपके मार्केट में जो वेजिटेबल मिलता है वो ले लो। मैं फिर कहता हूँ, जिस देश में, जिस मिट्टी में जो वेजिटेबल सीजन में आ गए हैं वो ज्यादा ले लो, आपको जल्दी फायदा मिलेगा। वो क्लाइमेट के हिसाब से आते हैं। तो अभी अंगूर नहीं है तो अंगूर के पीछे मत पड़ो, जिसका सीजन है उसके पीछे पड़ो। तो वेजिटेबल में गाजर है, टमाटर है, लौकी है, कद्दू है, क्या क्या नहीं है। वो किसी का भी जूस पियो, होता है खाना तो खाओ, मना किसने किया है? तो शाम को वेजिटेबल जूस ले लो, शाम को वेजिटेबल खाओ, खाने को मना नहीं किया है। अब रसाहार में खाना है या पीना है? मैं कहता हूँ जो होता है वो करो। खाना होता है तो खाओ, पीना होता है तो पियो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि कच्चा भोजन पचाने में 2 घंटे लगते हैं और पकाया भोजन पचाने में 14 घंटे लगते हैं। आपने पकाया भोजन छोड़ा है तो 12 घंटे की ताकत बचती है, वो आपके रोगों को दूर करेगी। फायदा ये ना आपका। तो समय मिलता है तो कच्चा खाओ, समय मिलता है तो जूस पियो, पर पीने से ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि अंदर कचरा नहीं जाएगा तो फायदा ज्यादा है। पर दांत से चबाए बगैर हमको अंदर भीतर जो है ना वो अनुभूति नहीं मिलती पेट भरने की। तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, खाओ। हमको पशु की तरह नहीं खाना है, अलग अलग अच्छी अच्छी रेसिपी बनाकर खाना है, तो खाओ। और शाम के बाद आपको जो है भूख लगेगी रात को, तो रात को आपको जो खाना है, एक तो आपको पैसेंजर ट्रेन में बैठना है तो पकाया भोजन खाओ, फिर क्या खाओ? तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मिलेट खाएंगे। मैंने कब कहा कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है? जो भी खाना है खाओ। मिलेट भगवान ने बनाए तो गेहूं चावल भी भगवान ने बनाए। मैंने पहले कहा कि क्या खाते हो,
इसकी बारे में ज्यादा सोचो मत, निकालने में समय दो। खाने के बारे में सोचना नहीं, निकालने के बारे में ज्यादा सोचना है। आप जो भी खाते हो रात को पकाया भोजन खाना है, तो कौन सा तेल, कौन सा भोजन, कौन सा क्या छोड़ो। दिन में प्रकृति दे वैसा, रात में पत्नी दे वैसा, सिंपल है। अगर वाइटल पावर मजबूत है तो आप सब कुछ पचाओगे। तो रात को पकाया भोजन आप जो पसंदीदा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि पशुजन्य आहार लेना है आपको, क्योंकि गाड़ी पेट्रोल से बनी है, डीजल मत डालो। हम नॉनवेज तो अलाउ नहीं करते हैं, पर दूध और दूध के बनाए पदार्थ जो है उसको भी आपको संभलना है, उसको भी आपको टालना है। तो वनस्पति आहार है वो ज्यादा से ज्यादा लेना है। वनस्पति आहार के लिए शरीर बना है, इसीलिए हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा वनस्पति की तरफ ध्यान देना है। तो रात में आपको जो है आपके हिसाब से खाओ, क्योंकि आपका मन तृप्त होगा तो रिजल्ट जल्दी मिलेगा, और मन अतृप्त होगा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए भोग लो, क्योंकि भोगी भोगना है। पर रोगों को आना नहीं है तो सफाई के लिए ध्यान दो। इसीलिए रात में पत्नी दे वैसा। पर आपको अगर जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वजन जल्दी उतारना है, तो हो सके उतना दिन। मैं 15 दिन की बात करता हूँ, इसका मतलब 15 दिन नहीं है, ये तो केवल शुरुआत है। आपको ज्यादा फायदा चाहिए तो 1 महीना करो, 1.5 महीना करो, 2 महीना करो, साल भर करो। मना किसने किया है? जितना सफाई करना है उतना करो। ये आपके विल पावर पर है, हमारी सलाह पर नहीं है। जितना ताकत है उतना टाइम आपको रसार करना है। तो रात को आपको पकाया भोजन बंद करना है, रात को भी जूस ही लेना है, या आपको पालक का जूस लेना है या वेजिटेबल का लेना है, ये आप तय करो। हम ज्यादातर पत्तियों का जूस बताते हैं, पत्तियों में ज्यादा फायदा होता है। आप अपने हिसाब से करो, या फिर आप फल खाओ। जो करना है नेचर से जुड़ जाओ। तो आप इसको हम एक्सप्रेस कहते हैं। कौन सी गाड़ी में बैठना है आप तय करो, या आपके विल पावर पर है, आपकी इच्छा पर है। आपको फायदा चाहिए तो रात में कच्चे पे आ जाओ। आपको लगता है नहीं मुझे भोजन करना है, पकाए भोजन पर वासना है, मैं कहता हूँ खा लो, डरो मत। डरते हैं इसलिए रोग बढ़ते हैं। अब ये हो गई भोजन पद्धति। अब ये भोजन पद्धति करते समय हमें एक काम करना है, उपवास से बॉडी के टॉक्सिन चले जाएंगे, रसाहार से नया कचरा आएगा नहीं, पर अभी पुराना निकालना है। तो पुराना निकालने के लिए हमको एनिमा करना है। ये जो एनिमा है, ये एनिमा आपको करना है। एनिमा कैसे करना है? एकदम सिंपल है। ये सुबह एक बार करो, और रात को भोजन ले रहे हो तो भोजन से आधा 1 घंटा पहले करो। और अगर आप हरी पत्तियों का या किसी भी फल का जूस ले रहे हो तो जूस लेने से आधा घंटा पहले करो। बाद में नहीं, बाद में करना है तो 4 घंटे के बाद। पर मैं कहता हूँ ज्यादा फायदा पहले होता है। तो रात के भोजन से या जूस से पहले करो, सुबह एक बार, रात को एक बार। मैं कहता हूँ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, ये कोई नेचुरल चीज नहीं, थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि हमने नेचुरल नहीं खाया है, उसको निकालने के लिए हमको ये करना है। हमारे बड़े हाथ में जो कचरा जमा हुआ है, इसको निकालने के लिए हमको एनिमा करना है। सुबह एक बार, शाम को एक बार। 1-1.5 लीटर का पॉट मिलता है कहीं भी मार्केट में, मेडिकल में भी मिलता है, सब जगह मिलता है। ये ले लेने का। ये पॉट और ये बड़ी नली सबको चलती है। और ये जो आगे की जो नली होती है, ऐसी नली मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये नली तकलीफ नहीं देती है। ये नली कॉक को लगाओ, और बस इसमें नल का सादा पानी। अब बहुत ठंड होगी तो थोड़ा गुनगुना करो। अगर बहुत बुखार आ गया होगा तो थोड़ा गुनगुना करो, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और रोज गुनगुना करने की जरूरत नहीं। नॉर्मल पानी भरो, टॉयलेट में 3 से 4 फुट ऊपर अटका दो, टॉयलेट में बैठे वैसा बैठो। इसकी अलग अलग पद्धतियां है, पर मैं कहता हूँ कठिन में मत जाओ, इजी करो। जैसा टॉयलेट में बैठे, जल्दबाजी मत करो। इतने साल लगे कूड़ा जमा करने में, तो निकालने में इतनी जल्दबाजी मत करो। धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलते हो तो आखिर तक पहुंचोगे। किसी की बातों में आकर गलत रास्ते पे मत जाओ, धीरे धीरे करो। तो जैसा टॉयलेट में बैठे वैसा बैठो। अगर पेट नेचुरल साफ होता है तो साफ होने के बाद एनिमा तुरंत करो, और अगर साफ नहीं होता है तो भी तुरंत करो। हमारी गलत फहमी है कि पेट के कारण बीमारी आती है, पेट के कारण नहीं, मलाशय के कारण। बड़ी हाथ में जो जमा वेस्टेज मटेरियल है, इसको निकालना है अभी। तो इसको निकालेंगे तभी बीमारी दूर भाग जाएगी। और दूसरा कूड़ा मन में पड़ा होता है, जो विचारों में होता है, उसको निकालो तभी बीमारी जाती है। केवल शरीर का मन निकालने से बीमारी नहीं जाएगी। अब जैसा टॉयलेट में वैसा बैठो, तो आप चालू करो। नली जो है, एयर निकल गई, इतनी नली 2.5 से 3 इंच आगे से संडास की जगह गुदा एक सेकंड नहीं है मुझे। एनएस पॉइंट में इतनी नली डालो। जितना पानी भीतर जाता है, 250 ml, 300 ml, 500 ml, जो जाता है जाने दो। मैंने फिर कहा है कि जितनी कैपेसिटी उतना जाएगा, पर नॉर्मल जाना चाहिए, जबरदस्ती मत डालो। जितना पानी जाता है उतना जाने दो, कॉक बंद करो। 7:30 तुम्ही पार्कमध्ये रमणाल की मी जिनाला 7:30 ची बात करी थी. तो रोको, जबरदस्ती Jigna, quiet please. Mute yourself. तो ये एनिमा जो है 1.5 लीटर का एनिमा 2 स्टेप या 3 स्टेप में करो, क्या फर्क पड़ता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप 10-10 बार करो, कोई जरूरत नहीं है। मैंने फिर कहा
धीरे धीरे आगे बढ़ो, जबरदस्ती जोर जबरदस्ती कुछ नहीं करना है। तो सुबह एक बार एनिमा डिब्बा खत्म होने तक करो, और रात में जो आप जूस लेने हो, जूस लेने से आधा एक घंटा पहले करो। ऐसा अगर आप करते हो तो एनिमा से बढ़िया आपकी सफाई हो जाएगी। और केवल सफाई नहीं होगी तो फायदा क्या होता है एनिमा से, कि जैसा हम सवेरे उठने के बाद आंखों को ठंडा पानी मारते हो तो आंखों को एनर्जी निर्माण हो जाती है। उसी प्रकार जब हम बड़ी आंत को ये पानी के द्वारा पहुंचाते हैं अंदर, तो बड़ी आंत जो सिकुड़ी हुई है वो खुल जाती है, उसका फायदा ज्यादा होता है। तो जो भी जहरीले तत्व बड़ी आंत में जमा हुए हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं और हमारे अंदर एनर्जी महसूस हो जाती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें चक्कर आ जाती है एनिमा के बाद, होता है वो एनिमा के कारण नहीं होता है। जो हम टॉयलेट में बैठते हैं इंडियन टॉयलेट में, तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक नहीं होता है, तो उसके कारण होता होगा, पर एनिमा का उससे कोई संबंध नहीं। एनिमा से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये बात पहले ध्यान में रखो। हमारे ऋषि मुनि बस्ती करते थे, ये बस्ती है सिर्फ सादे पानी का, उसमें कुछ ज्यादा मत डालो। बहुत सारे लोग कहते हैं हम ये डाले वो डाले, उसके पीछे मत पड़ो। ये सारी जो बातें हैं रसाहार की, मैंने मेरे रसाहार डाइट कैसे करें किताब में इजी बताई है। इसमें बहुत सारे अनुभव से लेकर सभी बातें मैंने बताई है। अनुभव करो, पढ़ो, आपको बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे। ये सिस्टम बहुत बड़ी है, 1 घंटे में हम समझा नहीं पाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, 1 घंटा होने को आया है। तो कहने का तात्पर्य है कि एनिमा करो, उपवास करो, रसाहार करो, पर ये करते समय श्रद्धा रखो। जितनी श्रद्धा ज्यादा उतना रिजल्ट ज्यादा। इसलिए मैं आज तक जो करते आया हूँ मैंने श्रद्धा नहीं छोड़ी है। मैं शाम का भोजन पकाया मनपसंद खाता हूँ, जो पत्नी ने बनाया सब कुछ खाता हूँ, एंजॉय करता हूँ, मना किसने कहा है। पर जब मुझे लगता है कि अभी भीतर में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं अपने आप को पहचानता हूँ, उस वक्त खाना बंद कर देता हूँ। दिन में कच्चा, रात में पकाया, पर जब मुझे बीमारी समझ में आती है मैं पकाया भोजन छोड़ देता हूँ। इतना आसानी। इसलिए मैं कहता हूँ कि मन को तृप्त रखो, धन को बांटो, सेवा करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। अरे सेवा करेंगे तो मनुष्य जन्म का फायदा है, वरना एक पशु में और हमारे में क्या फर्क है। जितनी सेवा निस्वार्थ करते हो हमारे कोशिकाओं की ताकत बढ़ती है, क्योंकि बांटने की खुशी बहुत जबरदस्त है और इसका अनुभव मैं ले रहा हूँ। आज आपके सामने जो बैठा हूँ ये ज्ञान के कारण नहीं बैठा हूँ। मुझे पता है कि मेरे सामने बैठे लोग मेरे से 10 गुना नहीं 1000 गुना ज्ञानी है। मेरे पास ज्ञान है, इस कारण मैं बैठा नहीं हूँ। मेरे सेवा और सुमिरन की ताकत और मेरे साधना के प्रति श्रद्धा, इसके कारण मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि साधना के सिद्धांत समझो, श्रद्धा रखो, सेवा करो और सुमिरन के लिए समय दो। जितना सुमिरन भगवान के साथ करोगे उतना भगवान समय आपको देगा। भगवान ने गीता में कहा है, यथा माम प्रपद्यन्ते तात तथैव भजाम्यहम्, जो आप मुझे दोगे उससे 1000 गुना आपको मिलेगा। तो मैं कहता हूँ थोड़ा समय भगवान को दो। उपवास का मतलब ही है, उप यानी निकट, समीप, और वास यानी रहना। सुबह थोड़ा समय, कम से कम 10-15 मिनट से लेकर थोड़ा समय जितना होता है उतना आप भगवान के समीप बैठो, तो देखो आपके कोशिकाओं की ताकत बढ़ जाएगी। अरे रोगों की हिम्मत क्या है हमारे भीतर आने की। इसलिए मैं कहता हूँ डरो मत, एंजॉय करो। बहुत सारा इजी है, इसको कठिन मत करो। बहुत सारे लोग आपको गलत दिशा में ले जाते हैं। अपनी सत्सत विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करो। मैं कहता हूँ बाहर का सुनना नहीं, बाहर का मार्गदर्शन लेकर अपने हिसाब से डाइट को करना है। तो अपनी सत्सत विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके नेचर से जुड़ जाओ। जो एंजॉय करना है शाम के वक्त आपको करना है, खाओ पियो, पर जब बीमारी आएगी तो छोड़ना सीखो। तो ये उपचार पद्धति नहीं है, ये शुद्धि का रास्ता है। शुद्धि का रास्ता समझ जाओ। तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, धन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, ये सारी शुद्धि समझ जाओ। ये सारा किताब में मैंने समझाया है। और अगर कुछ रहता है, क्योंकि अभी मेरे घड़ी में 8 बज गए हैं, 1 घंटा पूरा हो गया है, और 1 घंटे से ज्यादा समय लेना ये भी पाप है। करहि पाप पावै दुःख रुज भय शोक वियोग। इसीलिए मैं आपका समय नहीं लूंगा। आपको मुझे अगर कुछ पूछना है तो मेरे समझ के अनुसार मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो मैं फिर से आप सभी साधक का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दीपक भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, हरीश भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, चौहान साहब जी को फिर से याद करता हूँ कि आपने भी मुझे इतना सारा सिखाया है। बहुत बहुत आभार है आपका। तो कुछ गलती हो गई है तो छोटा भाई समझकर मुझे माफ कर देना। अगर आप कुछ रहता है तो हम आगे बात करेंगे। तो सभी को फिर से एक बार दिल से जय तुलसीराम। अभी बहुत सारा विषय बाकी है, समय मिला तो फिर बात करेंगे। तो अभी कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछिए। Thank you आप हर टाइम so आते रहो, ऐसा समय की बात नहीं है। आप हर टाइम आते रहो, बस हो गए। Please mute everyone. Mute everyone. We are starting question which we have received in advance. So हम लोग पूछेंगे और बाद में हम चैट में जो क्वेश्चन है वो पूछेंगे। तो पहले तो मुनीश भाई आप पहले अनाउंस करो,
हमारी जो लिंक है चैट में आपने लिंक लगा दी हुई है, उसमें लोग जाके उसमें मेंबर हो सकते हैं, अपनी व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर हो सकते हैं। आप थोड़ी थोड़ी उसमें थोड़ी एक्सप्लेन कर दीजिए मुनीष भाई। मुनीष भाई जी हाँ, तो आप ये मेंबर होना है कैसे कर रहे हैं? हाँ जी बोलिए आप। हाँ, तो कैसे मेंबर होना है, किसको व्हाट्सएप ग्रुप में काफी लोग नए हुए हैं, उनको वो लोग को अपना व्हाट्सएप ग्रुप की पता नहीं है, कैसे वो मेंबर हो जाए? जी हम लिंक शेयर कर रहे हैं अभी चैट में। अच्छा, आप लिंक को क्लिक कीजिए, जो हमारा मेन व्हाट्सएप ग्रुप है, आप हाँ। उसमें ऐड कर सकते हैं अपना नंबर। अच्छा, और हम शेयर कर रहे हैं अपनी वेबसाइट, और आप वेबसाइट पे भी जो करंट इवेंट्स हैं या फिर कोई भी न्यूज़, रेसिपीज कुछ भी हो, आप यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। ये है ndsnorthamerica.org। और हमारा यूट्यूब चैनल है न्यू डाइट सिस्टम नॉर्थ अमेरिका, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे आज की जो मीटिंग सेशन है वो भी यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। तो मुनीष भाई, आप आज की जो हिंदी में जो लेक्चर हुआ है वो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। हाँ, तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमारी यूट्यूब में लगा देंगे। जी, और सब टाइटल्स के साथ आ सकता है। हिंदी में भी लगा देने का है। हाँ, हिंदी में तो होगा ही, लेकिन जी, इंग्लिश में भी लगा देंगे। श्योर। ठीक है। अच्छा पूरिता बहन, अभी आपको जो भी क्वेश्चन आया है आप डॉक्टर आपको पूछिए, तो वो बताएंगे जवाब, तो सब लोग को मिल जाएगा। वो है किरण जी, सौथी पहले आपने बहुत अच्छा हमको आज को सिखाया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, and I had a wonderful time in your home and having a really good lunch. I still remember. किरण भाई का नंबर चैट में लगाया हुआ है। चैट पे हाँ, लगाया तो हुआ है। किसको भी किरण भाई के साथ बात करनी हो, क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर के बजाय, तो आप उनको डायरेक्ट फोन कर सकते हो। वो नासिक में रहते हैं। वो हमारे एनआरआई की हमने शिविर की हुई थी नासिक में, तब आए थे। उसने काफी अच्छा लेक्चर वहां भी दिया था, तो उसका जब पुनरावर्तन हो गया। आप सवाल पूछिए। अच्छा, पहला सवाल ये है कि हमारा एक साधक है, उसने बोला है कि उसका पेटलेट जो होता है ना ब्लड में, वो बहुत कम है। वो ये बराबर करती है, लाइक एनडीएस, रसाहार भी करती है, सब कुछ करती है, मगर पेटलेट इज नॉट गोइंग अप, ऊपर नहीं जाता है। तो आपको कुछ सजेशन है कि हम एनडीएस कुछ कर सकते हैं, उसमें कोई अलग तरीके? देखो, अब ये कितने साल से एनडीएस कर रहे हैं? साधना कितने साल से कर रहे हैं? 2 साल से, मेरे ख्याल से 2 साल से कर रहे हैं। एक बात ध्यान में रखो, हमने 3 बातें बताई थी डिसीज में। उसमें आध्यात्मिक बोलते हैं, अधिदैविक, आध्यात्मिक और अधिभौतिक। कुछ बातें जो होते हैं कर्मों के हिसाब से भी मिलती है। मैंने फिर एक बार कहा है कि समय दो, संयम रखो, सहन करो। जब डॉक्टर लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अब बाहर की दुनिया में, अस्पतालों में, मेडिसिन में या अलग अलग उपचार पद्धतियों में हम सब कुछ कर पाए हैं। यहाँ कौन आता है डाइट में? ये एनडीएस कौन करता है? जब सब कुछ फिर घूम फिर कर जो आता है ना, वही यहाँ पे आता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम रोगों के ऊपर बात कभी नहीं करते, हम रोगों के कारणों के ऊपर बात करते हैं। तो पहले कहने का तात्पर्य है कि आपने सब कुछ करके देखा है, सब कुछ अनुभव किया है, वहां आपको फायदा नहीं हुआ है और होगा भी नहीं, पर यह जरूर होगा। इसके लिए कितने साल लगेंगे ये कोई भी नहीं बता सकता। कहने का तात्पर्य है कि आपकी बीमारी बढ़ेगी नहीं, कम होती जाएगी, और उसके लिए बहुत समय देना पड़ेगा। बस श्रद्धा से करते जाओ। जो भी अंदर का बैठा हुआ जो डॉक्टर है, वो बहुत जबरदस्त डॉक्टर है, वो आपको फायदा जरूर देगा। इसके लिए एक ही काम करना है, साधना छोड़ी नहीं है। इसमें कोई मेडिसिन नहीं है कि आप अगर मुझे पूछेंगे कि इसके लिए मैं कौन सी पत्तियां इस्तेमाल करूं, तो ये साधना के सिद्धांत के गलत हो गया। अगर हम कहते हैं कि इसके लिए ये पत्ती, इसके लिए पत्ती, बिल्कुल नहीं। बस मैंने एक ही शब्द में कहा, सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल। अब जब मैं भगवान की साधना करने बैठता हूं, तो मैं अगर ऐसा कहूंगा कि मुझे भगवान कब प्रसन्न हो जाएंगे, तो ये कोई जवाब नहीं दे सकता। उसी प्रकार साधना से रिजल्ट कब मिलेगा, ये कोई भी नहीं बता सकता। ये केवल उस व्यक्ति के ऊपर आधारित है कि वो अपनी मनस्थिति को बिगड़ना नहीं दे।
सबसे पहला क्या होता है कि रिजल्ट जब मिलता नहीं है किसी साधक को तो उसकी मनस्थिति बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो मनस्थिति बिगड़ गई, केमिकल बनना शुरू हो जाता है और नेगेटिव में और डिप्रेशन में जाता है। तो रोग दूर ना होने का ये सबसे बड़ा कारण है कि अपनी मनस्थिति को बिगड़ने मत दो। 2 साल लगे या 10 साल लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, करते रहो। जब होने वाला है तब फायदा जरूर होगा। बाकी के अगर उपचार पद्धतियों से अगर फायदा होता है तो उसका सहारा लेने के लिए हमने मना नहीं किया है, पर साधना को छोड़ो मत, करते जाओ। जो सीजनल पत्तियां है, सीजनल फल है, उसका जूस, उसके फ्रूट्स खाते जाओ, तो रिजल्ट मिलता जाएगा। और संयम रखो, जल्दबाजी मत करो। 2 साल लगे या 2 साल से ज्यादा लगे, साधना छोड़ना नहीं है। इतना ही मेरा कहना है। थैंक यू। मेरे पास दूसरा सवाल ये आया है। वो सवाल पूछने के पहले मैं 6 ग्रुप्स का मैं थैंक यू बोल रहा हूँ। वो लोग का कोऑपरेशन काफी मिला है इसमें। एनडीएस एटलांटा, रीटा बेन एंड हंसा बेन, एनडीएस ग्रुप फ्रॉम फ्लोरिडा, हरेश भाई एंड भावनिका बेन, डालास डोली बेन, ये टेम्पा का तो बोल दिया, न्यू जर्सी में से हर्षद भाई कोठारी जिसने काफी हमें हेल्प किया हुआ है, और इंडिया से धरती बेन एंड मुकेश भाई ने भी हेल्प किया है। जिमिल शाह फ्रॉम लंदन, उसने भी काफी हमको सपोर्ट किया है। और लास्ट में आरती बेन भट्ट शिकागो का ग्रुप, एनडीएस ग्रुप में, वो लोग ने काफी हेल्प किया हुआ है। मेरे को सवाल ये आया हुआ है कि बंदे का वो ब्रेन का वो एन्यूरिज्म हो गया, वो नस फट गई और उसकी मोटर स्किल चली गई। तो वो लोग सोच रहे हैं कि कुछ भी हम ये एनडीएस चालू करके उसका अभी ये कंट्रोल चला गया है और सब ब्रेन शक्ति खलास हो गई, उसको भी कुछ याद नहीं आ रहा है कि क्या हो गया उसको। आपका कोई ऐसा कुछ पेशेंट है कि जिसको फायदा हो गया, पास्ट में हुआ था? हाँ, नहीं ऐसा कोई पेशेंट अभी तो मेरे पास नहीं है। अगर हमारे गुरुजी चौहान साहब के पास होगा तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि रोग ना आए इसके लिए हमको ये साधना करनी है, और जब रोग आते हैं तो वो दूर कब होगा इसके पीछे कोई भी कुछ भी नहीं बता सकता है। इसलिए मैं बार बार सबको विनती कर रहा हूँ कि ये साधना का महत्व समझो। ये उपचार पद्धति नहीं है, इसके सिवा दूसरा कोई पर्याय नहीं है। बस एक ही जवाब है मेरा कि फिर से आपको बता रहा हूँ कि साधना के ऊपर जो हम रोगों को दूर करने की अपेक्षा रखते हैं वो रखना बंद करो। सिर्फ शरण में जाओ, जो होगा वो होने वाला है। तो करते जाओ, रसाहार करते जाओ, दूसरा कोई पर्याय नहीं है। और अभी मेरे पास ऐसा कोई भी साधक नहीं है जिसका मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। अच्छा, नो प्रॉब्लम। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरी वाइफ को नी में और लेग में काफी पेन रहता है। उनके घुटन में वो जो गैप होता है वो 2 बोन साथ में आ गया है, तो ब्लड सर्कुलेशन कम है और वो उसका चलने का वो तरीका सब बिगड़ गया है, तो वो चल नहीं सकती है, कभी कभी बैठ जाती है, तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत पुअर है। तो उसके लिए कुछ हम कुछ कर सकते हैं एनडीएस? उम्र कितनी है अभी उनकी? उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? 55-56। अच्छा, कोई बात नहीं। देखो ये जो प्रॉब्लम्स है ये तो सॉल्व हो जाती है, ये कोई बड़े प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा। छोटे छोटे प्रॉब्लम है। जब आप रसार शुरू कर देते हैं, मैंने पहले ही कहा है कि शरीर में जो है हमारी जो 20-22 साल के थे तब की हमारी ताकत और अभी की ताकत थोड़ी कमजोर हो जाती है। जैसे गाड़ी पुरानी होती है तो पार्ट भी पुराने होते हैं, तो इसमें इतना चिंता करने की भी बात नहीं है, शक्ति बढ़ जाएगी। रसार जो करते हैं तो रसार करने वाले लोगों को शरीर में गैसेस की मात्रा कम होती जाएगी। जैसे गैसेस की मात्रा कम होती जाएगी तो हमारे भीतर का दर्द कम होता जाएगा। ऐसे कितने सारे पेशेंट है। आप, मुझे खुद को संधिवात था, संधिवात में तो मेरे सारी हड्डियां दर्द करती थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि एक 10 दिनों के भीतर मेरा प्रॉब्लम चला गया। और उसके बाद जो मैंने साधना उठाई, ये 6 साल में मुझे कहीं भी दर्द नहीं है। नहीं तो उससे पहले 12-13 साल मैंने संधिवात का, जोड़ों का दर्द सहन किया है। मेरा तो वजन कम है, मैंने आज तक कभी नॉनवेज खाया नहीं है, अंडा भी मुझे मालूम नहीं, व्यसन भी मैं कुछ नहीं करता, तो भी मुझे इतना दर्द बॉडी में था। जब ठंड पड़ती थी तो पूरा बदन दर्द करता था। तो आज मुझे 6 साल में, जब मैंने साधना शुरू की, 6 साल में मुझे आज तक कहीं भी बॉडी में दर्द नहीं है। मैं जो ये हड्डियां अभी बज रही है, कभी बजती नहीं थी, दर्द होता था, तो ये चला गया। तो आपको तो केवल घुटने का है, वो तो एकदम छोटा सा है। आपने तय किया, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्रॉब्लम दूर करना है तो विल पावर को मजबूत करो, वाइटल पावर के पीछे पड़ो। इम्यून पावर के लिए आप प्राकृतिक भोजन का अपनाओ,
और थोड़ा बहुत रात में पकाया भी खा लिया तो कोई नुकसान नहीं होना है। तो ज्यादा वजन होगा तो मात्र आपको रसार पे आना है। तो अच्छा, रसार करना है एनिमा 15 दिन के बाद, हफ्ते में 2-3 बार करो, ज्यादा के पीछे मत पड़ो। ज्यादा की करने की कोई आवश्यकता नहीं, बॉडी को नेचुरल बनाना है। ये कहना मेरा रह गया था कि एनिमा 15 दिन के बाद अगर वेट लॉस करना है तो आप करते रहो, 2 महीना 3 महीना में मना नहीं कर रहा हूँ, पर गलत आदत ना लगे, इसलिए बीच बीच में एनिमा छोड़ते जाओ, ताकि हमें शरीर को नेचुरल बनाना है। तो नेचुरल मोशन भी आना जरूरी है। अब तो वही सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में कंटिन्यूस वो आता है कि मैं जब भी छोटी थी तब मेरा बॉडी बहुत ब्यूटीफुल दिखता था, अभी थोड़ा मोटापा आ गया तो अभी मेरे को वो पुराना दिखना है, मुझे ब्यूटीफुल दिखना है, मैं अभी ओवरवेट हो गई। तो क्या किया जाए? ये एनडीएस में मुझे पता है कि वेट कम करने के लिए नहीं है, फिर भी एनडीएस से फायदा होता है वेट कम करने का? बहुत सारा फायदा होता है। हमारे पास तो 15 दिन में 13 केजी वजन कम हो गए लोग हैं, और किसी किसी का 15 दिन में 3 ही केजी कम हुआ है। तो मैंने पहले कहा कि आप साधना के प्रति कितना प्रामाणिक है, उसके ऊपर ये सब रिजल्ट मिलने वाले हैं। और जैसे जैसे आप पूरे दिल से करते हो, ये स्किन में जो बदलाव आता है ना, वो केवल भोजन से नहीं आता है, सेवा सुमिरन से भी आता है। इसीलिए ध्यान में रखो कि जब भी कोई आदमी बीमार होता है ना, तो बीमार होता है तो बहुत सारे लोग मिलते हैं उसमें, पर जब उसको अच्छा, उसका पसंदीदा व्यक्ति जब मिलने आता है ना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, वो उसका दुख भूल जाता है। तो ये जो केमिकल बॉडी में बनता है ना, तो ये केमिकल जो होता है वो बाहर के हमारे विचारों के द्वारा भी बनता है। तो इसीलिए विचार अच्छे रखो और सेवा सुमिरन में आ जाओ, और साथ में भोजन परिवर्तन करो, तो आपका वजन तो कम होगा ही होगा, और साथ में स्किन भी आपकी जो है ना, इसलिए ऋषि मुनियों की स्किन कितनी पावरफुल दिखती थी, कितना तेज उनके शरीर में था, क्योंकि वो जो होते वो सेवा सुमिरन में ज्यादा ये देते थे। अरे शरीर तो ऐसे भी नष्ट होने वाला है। मराठी में कहते हैं, नाशवंत देह दानव सकड़ा, आयुष्य खातो काल सावधान। अरे रोज ये मर रहा है, रोज हजारों कोशिकाएं मर रही है, अब जो मर रहा है उसके पीछे क्यों जा रही है? हमारे साथ जो कर्म आने वाले हैं उसके पीछे पड़ो, इसलिए अच्छे कर्म करो, स्किन बहुत चमक आ जाएगी, तेज आ जाएगी। ये नश्वर देह के पीछे मत पड़ो, फिर भी आपको ब्यूटीफुल रहना है, तो आप जो है दिन में कच्चा रात में पकाया यही चालू रखो। और वजन कम करना है तो थोड़े दिन रसार करके पहले वेट लॉस कर लो, बाद में खाने के बाद, रात का भोजन खाने के बाद वजन आपका स्टेबल हो जाएगा, और आपके हिसाब से ही सब कुछ होगा। तो चिंता मत करो, चालू रखो। दूसरा सवाल हमारा साधक का ये है कि उसको डायबिटीज है, थायराइड है ना, उसका मेजर इश्यू है कि ब्लीडिंग होता है, डॉक्टर बोलता है कि उसको मेनोपॉज है, हार्मोन का इम्बैलेंस है। तो जिस घर में हमने कहा है दूध और दूध के पदार्थ ज्यादा पीते हैं, खाते हैं, उस घर में हार्मोन बैलेंस का प्रॉब्लम होगा। जी, वो ज्यादा क्या है कि मेनोपॉज है लेकिन हार्मोन का इम्बैलेंस है, तो डॉक्टर ने उसको बोला कि सपोजिटरी दिया, तो वो सपोजिटरी की साइड इफेक्ट क्या है, उसको उसमें कैंसर हो जाता है। तो वो बोलती है कि शी इज नॉट टेकिंग सपोजिटरी। तो उसका क्वेश्चन वो है कि एनडीएस उसको कुछ हेल्प कर सकता है, क्योंकि उसको ब्लीडिंग होता है, शी इज इन मेनोपॉज आल्सो। अपने का एक क्वेश्चन, उनको डायबिटीज भी है? डायबिटीज है, उसको थायराइड। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, ये सारा जो है ना, ये बीमारियों के जो फैमिली लेकर हम बैठे हैं ना, ये ऐसे ही चली जाएगी, उसकी चिंता मत करो। मैं कहता हूँ ट्रैफिक जाम हो गई है, बाकी कुछ नहीं है, ट्रैफिक को खुला कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। गटर जब चौकअप हो जाती है ना, तो वो कहीं से भी गंदगी फेंकती है। उसी प्रकार हमारे बॉडी में तो 72,000 रस्ते हैं, कहीं भी ट्रैफिक जाम हो गई तो प्रॉब्लम आ जाता है। तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमारी जो सिस्टम है, रसार पद्धति है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करेगी, बिल्कुल बिल्कुल करेगी। पहले कहा मैंने, दूध और दूध के पदार्थ जिस घर में ज्यादा मात्रा में ले जाते हैं, उस घर में ये प्रॉब्लम ज्यादा दिखते हैं। यहाँ हमारे यहाँ 70 से 90% लेडीज को पीरियड्स के प्रॉब्लम, पीसीओडी के प्रॉब्लम आ रहे हैं। इसका कारण ये है कि दूध से बनी पदार्थ थोड़े दिन के लिए आप डालो, आपको अनुभव आ जाएगा कि प्रॉब्लम ज्यादा कुछ नहीं है। आप रसार करते तो डायबिटीज तो ऐसे ही नॉर्मल हो जाएगा, थायराइड तो ऐसे ही नॉर्मल हो जाएगा, हार्मोन इम्बैलेंस का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप घर को झाड़ू मार रहे हो तो सारा कचरा निकल जाने वाला है। तो ये जो डाइट पद्धति एक झाड़ू है, ये आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। जो बाहर रिजल्ट में मिलता है वो चमत्कारिक रिजल्ट इस डाइट, इस सिस्टम से, इस मार्ग से मिलता है। तो हार्मोन इम्बैलेंस के प्रॉब्लम सॉल्व हुए ऐसे बहुत सारी लेडीज है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें।
रसाहार श्रद्धा से कीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा आपको, जरूर मिलेगा। दूध से बनी पदार्थ टालो, चाय टालो, ये 2 बातें समझ लो। तो किरण जी, बेसिकली आप बोलते हैं कि कोई भी प्रकार का रोग हो, एनी काइंड ऑफ डिसीज, ओनली थिंग हमको वो याद रखना चाहिए कि पहला प्रेफरेंस है निर्जला, दूसरा है मांसाहार, तीसरा है लाइक कच्चा खाओ, और चौथा है कच्चा खाओ, रसाल करो, और इन द इवनिंग वी कैन ईट कुक फूड, राइट? और उसमें एकदम ऐसा पर्टिकुलर कोई सिस्टम नहीं है कि कहाँ और कैसे किसे ऐसा हम लोग अच्छे हो जाएंगे। सब दुखों की एक दवा, वन लाइक बेसिकली यू आर सेइंग वी सपोज टू बी डूइंग ऑल द टाइम। सही बात है, आपको एक ही काम करना है। सही समझ गए आप कि रोगों को दूर करने के पीछे मत जाओ। हमने कहा है अंधेरे को हटाने के पीछे मत पड़ो, दिया जलाओ। आपके भीतर रोग है, शरीर है, घर है तो कचरा बनने वाला है, झाड़ू मारो। उसी प्रकार शरीर है तो रोग है, और रोग को दूर करना है तो रोग को आने से पहले ही साधना शुरू करो। और रोग आए हैं तो उसको दूर कब होगे इसको भूल जाओ, करते जाओ, वो अपने आप भाग जाएंगे। समय दो और करते रहो, इस साधना को श्रद्धा से करते रहो, रिजल्ट मिलता जाएगा। चैट में सब क्वेश्चन चेक करेंगे। चैट में काफी क्वेश्चन, 16 एक- क्वेश्चन आ गए। हाँ, देख लीजिए। एक फिनल में मैं बार बार कहता हूँ साधना शुरू कर दो, क्वेश्चन के आंसर अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि ये साधना जो है ज्ञान की नहीं है, ये अनुभव की है। जितना आप प्योरिटी से सोच समझकर दिल से करोगे, उतना प्रॉब्लम आपको छोटा दिखने लगेगा। जितना प्रिंसिपल को समझोगे, जितना जल्दी समझोगे, आपका कोई भी प्रॉब्लम है वो दूर होता जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ ये साधना उपचार पद्धति नहीं है, और हम बार बार उपचार की तरफ ही ध्यान देते हैं। सफाई करते जाओ, मन की, तन की, धन की, रिजल्ट अपने आप मिलता जाएगा। अच्छा, Sorry, दूसरा बोलिए। सवाल है, अभी हम लोग तो समझ गए हैं, और हम लोग को, मेरे और दीपक भाई को तो मालूम है सब दुखों की एक दवा, मैंने बोला जैसे। लेकिन अब सवाल आया है कि किसी की आंटी है, वो 65 ईयर ओल्ड है, एंड उसने हर्निया की सर्जरी की है 15-20 साल पहले, 15-20 इयर्स बैक। तो उसको अभी वो नेट आती है ना, उसने नेट डाली है उधर, सो इट वो पाइल्स का प्रॉब्लम के लिए। सो नाउ शी इज अफ्रेड कि भाई एनडीएस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और लाइक यू नो बिकॉज शी हैज अ प्रॉब्लम विद द नेट, तो वो एनिमा तो ले नहीं सकेगी। तो एनडीएस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर स्वस्थ रहना है तो आपको एनडीएस का मतलब रसाहार जो है वो करना ही चाहिए। अगर रसाहार करेंगे तो उनको तो फायदा होगा ही। तो उनका वजन अगर ज्यादा होगा तो नेट थोड़ा ढीला पड़ सकता है। तो दिन में कच्चा, रात में पकाया सूत्र चालू रखिए, और मुझे नहीं लगता है एनिमा लेने से कोई दिक्कत होने वाली है। हफ्ते में 1 आध बार एनिमा लेंगे तो कम से कम जमा हुआ मल तो निकल जाएगा, उससे क्या नुकसान होगा, उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो इतना भी डरो मत, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिन में कच्चा, रात में पकाया सूत्र चालू करो, और एनिमा जो है हफ्ते में 1 आध बार लेंगे तो जो भी तकलीफ होती है भीतर गैसेज एसिड की, वो तो चली जाएगी। कौन सा तुरंत नेट नीचे आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो हफ्ते में 1 आध बार एनिमा जरूर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला उनको। जरूर कीजिए, रसार जरूर कीजिए। ये आपकी जो जूस बुक है आपने जो हिंदी में लिखी हुई है, उसमें रसाहार कैसे करना, उनकी काफी डिटेल दी हुई है। रसाहार कैसे स्टार्ट करना, और रसाहार के क्या क्या फायदा है, उससे क्या क्या चीज क्योर हो सकती है, वो जानना, हमें जानना है। तो वो लोग पूछ रहे हैं कि ये बुक में हमको रसाहार कर से क्या हमको फायदा हो सकता है, वो लोग को जानना है। देखिए, अभी जो 1 घंटा मैंने जो बताया उसका कारण ये है कि बुक में मैं मेरे 6 साल के जो अनुभव है वो बताए है कि जब आप रसाहार शुरू करते हैं तो पहला असर जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। आपका मन जो है ना वो सात्विक बनना शुरू हो जाता है, आपके मन में सेवा भाव जागृत होना लगता है। और जो आत्मिक आनंद है, क्योंकि आनंद जो होते हैं 2 होते हैं, भोगों का होता है और एक आत्मिक आनंद होता है। तो भोगों का आनंद मतलब क्या, अगर हम एक जलेबी खाते हैं मीठी तो अच्छा लगेगा, 4 खाते हैं तो भी अच्छा लगेगा, पर हम अगर 20-25 खाते हैं तो उल्टी कर देंगे।
मतलब कोई भी भोग जो होता है वो अगर ज्यादा लेते हैं तो वो रोगों में परिवर्तित होता है ना। पर जब हम ये साधना शुरू कर देते हैं तो ये साधना हमारे सभी भोगों पर एक नियंत्रितता लाती है, और वो जो नियंत्रित मतलब जो बंधन है वो अपने आप आने लगता है। तो वो कैसे आता है ये किताब में मैंने दिया है कि आप जब शुरू कर देते हो तो आपका भीतर बैठा भगवान आपको मार्ग दिखाने चल लगता है। जैसा मैं ये अनुभव कर रहा हूँ 6 साल में कि जो भी प्रॉब्लम है वो तो दूर होते ही जाते हैं, पर हमारे भीतर एक शक्ति अनुभव होने लगती है कि अरे ये तो बहुत आसान है। और हमारे भीतर आत्मिक आनंद अभी है, आनंद जो होता है ये हम बता नहीं सकते कि हमें क्या हो रहा है, ये अनुभव की बात है। तो ये अनुभव आपको आने लगता है और आदमी क्या चाहता है, सुख चाहता है, खुशियां चाहता है। ये खुशियां आपको रसायन से मिलना शुरू हो जाता है, ये अनुभव कीजिए। तो सभी प्रकार के प्रॉब्लम जो है, जिसे मैंने कहा केवल शारीरिक नहीं है, मानसिक भी बहुत है। डिप्रेशन में भी बहुत जाते हैं हम, रात को नींद नहीं आती है, या फिर गुस्से ज्यादा होता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, या फिर काम में मन नहीं लगना। ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। बड़े बड़े प्रॉब्लम तो जाते ही जाते हैं, डायबिटीज बीपी तो हमको ऐसा कोई लगता ही नहीं है बीमारी है, ये तो 3 से 5 दिन में भी चली जाती है। पर जो डिप्रेशन जैसा बीमारी है, डिप्रेशन यानी हम जो हमारे मन को जो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बाहर का क्लाइमेट भी हमको तकलीफ देता है। जैसा कोरोना आ गया तो सब बिगड़ गया, हमारा आर्थिक परिस्थिति बिगड़ गई, हमारी शारीरिक परिस्थिति बिगड़ गई, फैमिली बैकग्राउंड जो है वो बिगड़ गया। ये सबको क्लियर करने का काम जब रसार शुरू करते हैं तो हमारे मन पर पहला असर होता है, और मन जो है इस संकटों को या प्रॉब्लम्स को दूर करने में कैपेबल हो जाता है। तो रसार से हमारा मन पावरफुल बनेगा, हमारी बुद्धि जो है सही निर्णय लेने शुरू कर देगी, क्योंकि ऐसे समय पर हम भटक जाते हैं, किसको पूछो क्या करें। तो बुद्धि जो होती है वो खुद निर्णय लेना शुरू कर देती है। तो रसार से मन, बुद्धि और हमारा आत्मा जो है वो भक्ति की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो ये सारे फायदे होते हैं भाई, बहुत फायदे हैं। मैं कितने बताऊं, एक नहीं हजारों फायदे हैं। आपके सामने में बैठा हूँ, ये तो फायदों का पुतला ही बैठा है। मैंने पहले कहा मेरे पास कुछ नहीं था, आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, ये भी क्या कम फायदा है। तो सभी फायदे हो जाएंगे, पर फायदे के दृष्टिकोण से मत करो, आपको बहुत फायदे हो जाएंगे। तो चालू करो, ये सब किताब में दिया है, अनुभव करो। सभी पॉइंट इसमें मैंने लिखे हैं, मेरे समझ में जितने आए आप पढ़ो, और पढ़ेंगे जब कोई नहीं समझ में आएगा एक आध बात तो मुझे कभी भी फोन करो। देखो सवाल बहुत रहेंगे, वो कभी मिटने वाले नहीं है मरते दम तक। मेरा कहना इतना ही है कि आप मर्ज हो जाओ, समर्पित हो जाओ, इन्वॉल्व मत हो जाओ। मैं उदाहरण देता हूँ, इस बाटली में अगर पत्थर को रखोगे पानी में तो पत्थर डिजोल्व नहीं हो जाएगा, पर अगर इसमें अगर नमक डालते हो तो वो डिजोल्व हो जाएगा। तो डिजोल्व हो जाओ, अगर ये साधना में आप डिजोल्व हो जाओगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, केवल इन्वॉल्व होने से रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो डिजोल्व कैसे होना है ये किताब में मैंने लिखा है। तो बहुत सारे बातें हैं, आप अनुभव कीजिए, बहुत सारी बातें हैं, और हम आपके साथ हैं, हम कहाँ छोड़ने जाने वाले हैं। जब भी कोई समस्या आए कि हमको फोन करो, हम आपको छोड़ेंगे नहीं ना, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको पकड़ के। और अरे अभी एक सवाल है कि किसी को 13 साल की बच्ची है, द डॉटर, उसको डायबिटीज है टाइप 1 एंड वो इंसुलिन मल्टीपल टाइम पे लेती है, एंड दे जस्ट स्टार्टेड न्यू डाइट सिस्टम। हमारी सिस्टम उसने शुरू तो कर दी है, लेकिन उसका सवाल ये है कि ये डायबिटीज के लिए आर यू सजेस्टिंग एनी लाइक अ स्पेशल डाइट? एंड उसका दूसरा वो होता है कि सुबह का जो आप फास्टिंग बोलते हैं ना, वो भूखी नहीं रह सकती है बिकॉज ऑफ द डायबिटीज, शी कांट स्टे हंग्री। सो व्हाट डू यू रेकमेंड? नहीं, अब कैसा है, बच्ची छोटी है, कोई बात नहीं, बढ़ती उम्र है, और डायबिटीज जो है उनको फास्टिंग में शुगर अगर बढ़ती है तो थोड़ा फास्टिंग अभी शुरुआत में कम करना है, और जो नाश्ता करना है वो फलों का करे तो या वेजिटेबल्स का करे। और दूसरी बात है कि सुबह का इंसुलिन हो सके उतना टालना है। उनको, बच्ची को एक ही है कि बहुत धीरे धीरे आगे ले जाना है, एकदम शॉक ट्रीटमेंट नहीं देना है। ऐसे बच्चों को अभी एकदम शॉक ट्रीटमेंट नहीं देना है, क्योंकि उनके मन की तैयारी उतनी नहीं होती है। और मैंने फिर से कह रहा हूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति को मन का साथ नहीं होगा तो उतना जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है, अगर घर वालों का साथ नहीं होगा तो उसको रिजल्ट नहीं मिलता है। ये सभी बैकग्राउंड देखकर हमको साधना करनी है। तो बच्ची के लिए मुझे लगता है मैंने बताया भी होगा उनको शायद, तो सुबह का नाश्ता जो है कच्चे पे आ जाए, और जो भोजन है सुबह का भोजन छोड़े, रात का चलने दे। रात का भोजन है तब इंसुलिन ले सकते हैं, दिन में हो सके उतना टालने की कोशिश करो। और अगर डायबिटीज चेक करो, ज्यादा लगता है तो ही थोड़ा इंसुलिन की मात्रा चलने दो, बाकी एनिमा जो है वो करते रहना।
और उनको मेरा नंबर दे दो, मैं थोड़ा विस्तार से उनके साथ बात करूंगा। 2-5 मिनट में मैं जवाब नहीं दे सकता है, उनका सब जो है उनसे शांति से बात करके उसके ऊपर मैं उनको जवाब दूंगा। हाँ, हमने आपका फोन नंबर उसमें बच्चों डाल को फायदा दिया। हो जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए, इस साधना से बच्ची को बहुत फायदा होगा। और अभी मेरे को बोलिए। एक अनाउंसमेंट करने की है कि हमारे पास 100 बुक है, वी हैव अ 100 बुक, सो यू कैन कॉल दीपक पारे और पुनीता शाह and we will just go ahead and release this book from tomorrow. So anybody wants it, It'll be in a my WhatsApp. phone number 714-812-2422 and Deepak bhai 949 521-1100 949-521-1100। और दूसरी चीज ये है कि हम ट्यूसडे हमारी मीटिंग है, वो फास्टिंग हम पहले वीक में 24 आवर्स करेंगे, दूसरे वीक में 48 आवर्स करेंगे, थर्ड वीक में 72 आवर्स एंड फोर्थ वीक में 96 आवर्स। वो गाइडेड फास्टिंग होगा। एवरी ट्यूसडे देयर विल बी फास्टिंग मीटिंग फ्रॉम 7 to 8। यही जो नंबर अभी आपने जो डायल किया जूम के लिए, वही नंबर और वही पासवर्ड होगा। तो ये ट्यूसडे को 31 को भी हम लोग मिलेंगे। मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कैसे फास्टिंग करना है। तो हम लोग धीरे धीरे फास्टिंग को आगे बढ़ाएंगे और सब लोग को कॉन्फिडेंस दे देंगे। तो वो हमारा प्रोग्राम चल रहा है। और दूसरी चीज वो है कि एक लास्ट सवाल ये आ गया कि मुझे आर्थराइटिस, तो डॉक्टर बता रहे कि आई एम टू ओल्ड टू डू दी सर्जरी, तो मैं क्या ये एनडीएस के जूस रसाहार से मैं आर्थराइटिस मिटा सकता हूँ कि नहीं? ये लास्ट सवाल अभी आ गया। बिल्कुल, आर्थराइटिस तो दूर होता ही है, ये तो प्रॉब्लम कोई बड़ा प्रॉब्लम है ही नहीं। और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास तो एक ही जवाब रहता है, एक तो ऑपरेशन करो, दवाइयां लो, ये करो वो करो। मैं कहता हूँ इसमें मत अटको। मैं कर सकता हूँ क्या, ये सवाल अगर मेरे मन में आता है तो इसका मतलब ये है कि अभी भी हम साधना को नहीं समझे हैं। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ये बात जाते जाते मैं फिर से कहता हूँ कि कैन डू। अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं युवा हूँ, मेरे भीतर ताकत है। और अगर मैं कहता हूँ कि मुझसे नहीं होता है तो मैं बूढ़ा बन जाऊंगा। हम बूढ़े नहीं है, हम युवा है, हम कर सकते हैं। और आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। मेरा हो गया तो आपका क्यों नहीं हो जाएगा? तो आप जरूर कीजिए, रसार जरूर कीजिए। जिनको भी कुछ सवाल है बाकी है, इसके जवाब हम पर्सनल मुझे कभी भी फोन करो, हम इसके ऊपर जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समय की मर्यादा है और सवाल खत्म नहीं होने वाले हैं। किरण जी, आपका फोन नंबर हमने चैट में सबके साथ शेयर किया हुआ है, आपका फोन नंबर तो डायरेक्टली। और आपके पास जो टाइम होगा तो थोड़ा क्वेश्चन हम ओपन करने वाले हैं, ये तो लोग सवाल पूछ सकते हैं। अभी थोड़ा टाइम ज्यादा होगा तो नहीं होगा तो फिर हम बंद कर देंगे। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं है। मेरा नंबर फिर भी मैं आपको सामने जो साधक बैठे उनके लिए एक बार बताता हूँ कि 9689453456 ये सेवा के लिए हमारा नंबर है। तो बिल्कुल मुझे फोन कर सकते हैं आप कभी भी। तो कुछ जवाब हो, सवाल है तो जवाब देने की कोशिश करूंगा, कोई बात नहीं, पूछ सकते हैं। Now anybody has a question, please raise your hand and then I will tell you to unmute. Okay, Mr. K. Vyas, go ahead and unmute yourself and ask question, please. K. Vyas, you want to ask a question? आपको पूछने का है ना? तो आप अनम्यूट करके पूछ लो प्लीज। सुनाई नहीं देता। आपका अनम्यूट नहीं है। Now, yes, go ahead. Yes. बोलिए। You put your number for USA people on the this website or this. हमारी वेबसाइट में होएगा, वेबसाइट में। यस, नॉर्थ अमेरिका में मैं डाल दूंगी सब, बुक का नाम, हमारा फोन नंबर सब डाल दूंगी। तो इफ यू कैन व्हाट्सएप ग्रुप किरण वाडारे में डाल दो, देन इट इज बेटर। अच्छा, मैं ठीक है, मैं वही करूंगी, व्हाट्सएप में किरण जी का नंबर डाल दूंगी। नहीं, किरण जी का तो है, आप दोनों का। हमारा डाल देंगे, हम डाल देंगे। और दूसरा कुछ क्वेश्चन, और एनीबॉडी एल्स हैव अ क्वेश्चन? दूसरा,
Okay, unmute yourself, please. કોઈને આલ્ઝાઇમર ડિઝીઝ હોય તો ક્યોરેબલ છે? મારી એક ફ્રેન્ડ ને છે તો છે તો હું એને કોન્ટેક્ટ કરાવું. किरण जी क्वेश्चन आ गया कि अल्जाइमर के लिए एनडीएस इफेक्टिव है कि नहीं? अब देखो, मैंने पहले कहा कि बीमारी के ऊपर या रोगों के ऊपर ये बात हम करते ही नहीं. हमें पता नहीं कि शरीर में कितने रोग है. एक तो 72,000 नाड़ियां हमारे बॉडी में है. अब 72,000 नाड़ियां है, इसका मतलब कितने सारे बीमारियां हमारे भीतर होगी. तो रोज अलग अलग प्रॉब्लम्स आते ही रहने वाले हैं. पुराने प्रॉब्लम भी रहेंगे. कोई भी प्रॉब्लम हो, फिर घुमा फिरा कर हम यही आ रहे हैं कि आप अनुभव तो करो, शुरू तो करो. आप अनुभव करेंगे तो पता चल जाएगा कि आपका प्रॉब्लम दूर होता है कि नहीं. तो जरूर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं. शुरू तो कर दीजिए. अगर प्रॉब्लम नहीं भी गया तो कोई बात नहीं, पर वो बढ़ेगा नहीं, ये बात ध्यान में रखो. तो मैं कहता हूँ कि घुमा फिरा कर सभी जवाब जो है एक ही है कि आप शुरुआत कर दो, रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा. बस शुरुआत कर दो. तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसे प्रॉब्लम्स है कि इसके ऊपर हम स्पेशल कुछ बताए. मैंने पहले कहा कि साधना के सिद्धांत अगर समझ में आए तो मेरा रोग जाएगा क्या, ठीक हो जाएगा क्या, ये सवाल नहीं आएगा. कहने का तात्पर्य है कि सिद्धांत समझ में आ गए कि मुझे सफाई करनी है और मुझे रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ानी, वाइटल पावर बढ़ानी है, तो मेरा प्रॉब्लम तो जाने ही वाला है. तो इसके लिए स्पेशल क्या बताए, मुझे एक बात बताइए. आप शुरू तो कीजिए. एनिमा, उपवास, रसाहार, सेवा, सुमिरन, इसके सिवा दूसरा कोई पर्याय किसी भी रोग के लिए नहीं है. तो फिर अभी और क्या चाहिए. तो शुरू कर दो. ये दिव्य अनुभूति ले लो तो हो जाएगा. कोई चिंता मत कीजिए. पर वो कब होगा ये हम नहीं बताने वाले. ये आपका भगवान जाने और आपकी कर्म जाने. मेरा कहना इतना है कि आपको करते जाना है, साधना करना है. और कोई क्वेश्चन? सर मिश्री और गुड़ ले सकते हैं क्या? हाँ, गुड़ और क्वेश्चन अनिश भाई. हेलो. हाँ बोलो. हेलो हाँ, मधुकर बोराडे. हाँ, आवाज आ रहा है? प्लीज जल्दी बोलिए ना, काफी लोग ने पूछना है ना. अच्छा हाँ. अच्छा. मैं शाम को जो खाने का है, शाम को एक टाइम, उसमें कुछ भी खा सकते हैं या उसमें हाँ. कुछ रिस्ट्रिक्शन है? अभी देखो, ये सही सवाल है. अभी कुछ भी खा सकते हैं, इसका मतलब क्या है? कुछ भी खाना मतलब क्या है कि जो हम अपना गेहूं, चावल या मिलेट, ये जो आते हैं ये पृथ्वी तत्व में आते हैं. ये अनाज जो होता है वो हेवी होता है. तो रात में अगर हेवी खाना खाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं. पर गीता ने बताया हुआ भोजन खाइए. युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. अगर युक्त खाते हो, इसका मतलब अगर 4 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खाइए, तो इसको युक्त कहा जाएगा. थोड़ा सा पेट खाली रखिए तो आपको उतनी तकलीफ नहीं होगी. तो कुछ भी खाना है, इसका मतलब जो हम रोज खाते आए हैं वही खाना है. इसका मतलब नॉनवेज नहीं, इसका मतलब पशुजन्य आहार नहीं. पर अगर हमारे मुंह को टेस्ट है बहुत सारी और हमारी लालच अगर जा नहीं रही है तो कोई बात नहीं. थोड़ा बहुत आप मिठाई वगैरह जैसा हम हमारे त्योहारों के समय पे खाते थे, ऐसा त्योहार के समय हम खा सकते हैं. इससे कोई तुरंत नुकसान नहीं होने वाला बॉडी को. पर अपने शरीर की ताकत पहचान कर खाइए तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली. पचाने को समझ दो. रात को जो खाते हो खाओ, पर पचाने को समझ दो. अगर आपको लगा कि हजम नहीं हुआ है तो दूसरे दिन खाना मत खाइए. इतना सिंपल है. तो रात को खाना खा सकते हैं. किरण जी, एक बात और भी है कि शाम को खाना खाने का है तो उसके लाइक इफ दे हैव अ डायबिटीज, उसके हिसाब से खाना चाहिए. ऐसा नहीं है कि कुछ भी खा लो, पूरा दिन नहीं खाया है तो. स्टिल वी हैव टू वॉच अवर डाइट, राइट? बराबर है. अगर हमें बीमारी है तो इसका मतलब ये नहीं कि ठूस ठूस के खाना है. मैंने पहले कहा कि पहले बीमारी दूर करो. फिर भी मैं बार बार ये समझा रहा हूँ कि पहले बर्तन खाली करो, उसके बाद हमको देखो. खाने में मत अटको, पहले खाली करो बर्तन. और अगर भट्टी तप गई है तो आपको मैंने कहा कि अभी खाओ, पर भट्टी तपी कि नहीं वो तो देखो. अगर आपकी भट्टी अभी कमजोर है तो इतना भी खाने के पीछे मत जाओ, नहीं तो फिर से रोग बढ़ेंगे. तो शाम का भोजन कुछ भी खाओ, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ भी खाना है. हमें अपने शरीर की शक्ति को समझकर खाना है. तो बीमारी अगर गई नहीं है तो थोड़ा सीमित रहो. मैंने कहा 4 रोटी की जगह 2 ही खाओ, उसके नीचे आ जाओ, पर ज्यादा मत खाओ. ज्यादा खाओगे तो और बीमारी बढ़ेगी. ये उनके लिए मैं कह रहा हूँ जो अभी भी भोगों में अटके हैं, जिनका अभी भी वासना आसक्तियों में जो कहते हैं ना
कि मुझसे छूट नहीं रहा है, उनके लिए हम थोड़ा फ्लेक्सिबल कर रहे हैं। वास्तविक आपको रात का भोजन कच्चा ही लेना है, पर छूटती नहीं है वासना है, इसीलिए हम कहते हैं कि चलो जो पसंदीदा भोजन है खाओ। तो साधना समझ जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी खाओ, तो पसंदीदा सही बात। भोजन थोड़ा सीमित होकर खाओ। मधु गांधी, Can I आपको ask one question? मधु गांधी I प्लीज have one. I Madhu have one Gandhi, question. unmute please. Then ask the question. Yeah. हाँ, अभी question. I'm enjoying the talk. हाँ. So at this moment, I have some situation with my bone density. From the osteopenia, it has gone to osteoporosis. हुआ है, तो अभी ये लोग यहाँ पे तो इंजेक्शन वगैरह बोल रहे हैं, मगर आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट ऑन दैट इंजेक्शन। तो आपका उसके लिए बोन डेंसिटी उसकी जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है उनसे लिए नेचुरल क्या कर सकते हैं कि जैसे आई डोंट हैव टू टेक द इंजेक्शंस। किरण जी, पता चला क्या बता रही है? वो पूछ रही है उनकी जो बोन डेंसी, जो बोन की जो वो लोग ने टेस्ट करवाई वो कम आई, तो वो लोग उसको कैल्शियम का इंजेक्शन लेने के लिए बता रहे हैं। तो वो बता रही है कि कुछ ऐसा खाना नहीं तो जूस आहार करेंगे तो उसका कैल्शियम बढ़ जाएगा, तो फिर उसको ये दवाइयां नहीं लेनी पड़ेगी। आपके पास क्या सोल्यूशन? दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कैल्शियम की। अगर आप हरी पत्तियों का जूस लेना शुरू कर देते हैं तो कैल्शियम की मात्रा जो है अपने आप ठीक हो जाएगी। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, इंजेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी जानवर को आपने आज तक कैल्शियम, विटामिन, हीमोग्लोबिन की इंजेक्शन लेते हुए नहीं देखा है। और हम लोग किसमें कितना कैल्शियम है, किसमें कितना हीमोग्लोबिन मिलेगा, ये देखकर खाना लेने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करने की आवश्यकता। बिल्कुल आप रसार शुरू कर देंगे तो हरी पत्तियों में से आपको 15-20 दिन में ही फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। कैल्शियम की मात्रा जो है वो आवश्यकता जितनी है उतना हो जाएगा, तो उसमें कोई इतना सोचने वाली बात नहीं है। कैल्शियम, विटामिन, हीमोग्लोबिन, अभी हमारे पास इतने सारे रिजल्ट आए हैं कि जिनको हीमोग्लोबिन की कमी थी 6 था तो उनका तो 12-10 बराबर लेवल हो गया। जिनको कैल्शियम कम था उनका लेवल बराबर हो गया। जिनको जो भी प्रॉब्लम था, विटामिन की कमी थी, वो सारी पूरी हो गई। तो मुझे नहीं लगता इनको की कोई आवश्यकता है। तो जो जहां रहते हो वहां जो पत्तियां आती है सीजन में या वेजिटेबल्स आते हैं, उसका जूस ज्यादा लेना शुरू कर दीजिए, आपको फायदा हो जाएगा। इंजेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अनुभव कीजिए, जो इंजेक्शन में दे रहे हैं वो कोई अमृत में ला रहे हैं, तो वो भी तो प्रयोग किया गया है ना। तो हम भी प्रयोग करेंगे। तो हरी पत्तियों का जूस अगर लेते हैं तो इंजेक्शन से ज्यादा फायदा आपको हरी पत्तियों से मिल जाएगा। तो कोई अलग चीज लेने की आवश्यकता नहीं। जरूर आप हरी पत्तियों का जूस लीजिए, कैल्शियम की मात्रा मिल जाएगी। तो इसका तो साइड इफेक्ट होगा, पर हमारे हरी पत्तियों से मिलने वाले कैल्शियम का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। वो आप अगर बाहर का इंजेक्शन लेते हैं तो आप दूसरे रोगों को आमंत्रण दे जाओगे। तो इससे अच्छा है कि ये हमारी कैल्शियम के लिए जो रसार पद्धति है वो ले लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमारे शरीर में आज तक हमने कभी चेक नहीं किया 6 साल में कि कैल्शियम, विटामिन की कभी कमी नहीं आएगी। लास्ट क्वेश्चन है कि अभी 2 तरह के जूसर आते हैं। वन इज अ स्लो जूसर एंड वन वी आर मेकिंग इन वाइटामिक्स विद द वाटर एंड वी पुट सम मिक्सिंग, बर्फ डालते हैं, आइस डालते हैं। सो इज रियली नेसेसरी कि जैसे हमको कोल्ड प्रेस में लाइक प्योर जूस पीना चाहिए बिना पानी और वाटर तो और चलेगा कि हम वाइटामिक्स में बना के हम लोग छान लेते वही चलेगा? देखो, पहली बात तो ऐसा है कि ये जो है ना, इसके ऊपर मैंने आज तक कभी बात नहीं की। इसका कारण एक है कि मैं ज्ञान के पीछे ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ। मैंने कहा कि श्रद्धा से आप जो करते हो ना आपको रिजल्ट मिलेगा। 6 साल में मैंने केवल एक साधारण मिक्सर जो साधारण घर में होता है उसका इस्तेमाल किया है। मैंने कोई भी जूसर का इस्तेमाल नहीं किया है। आपके पास जूसर लेने की है ताकत, आप जूसर लीजिए। अब उसमें कौन सा जूसर लेना है, कैसा लेना है, इसके विषय में मैं कोई भाषण नहीं करता हूँ। मैंने इतना ही कहा कि मेरे पास एक साधारण मिक्सर है, 2000 रुपए 3000 रुपए तक का मिलता है। उसके साथ मैंने 6 साल में जो भी किया है, जूस बनाकर छान कर लिया है, जो जाली हम दिखाते हैं, छाननी दिखाते हैं, उसकर छान कर लिया है, तो मुझे तो फायदा हो गया है।
अब अगर साधारण मिक्सर से मुझे फायदा हो गया है, तो आज 10,000 का जूसर मिलता होगा, कल 1,00,000 रुपए का मिलेगा, परसों 1 करोड़ का मिलेगा। तो वो तो आपकी मर्जी, आपको कौन सा जूसर लेना है, उसमें क्या। तो मुझे कहना है कि जो जो आसान तरीके से फायदे होते हैं, तो कठिनाई में क्यों जाए। और अगर आपको फायदा लेना है, उससे होता है, तो भाई ये ज्ञान देने वाले बहुत लोग बैठे हैं। तो ये सवाल का जवाब मुझे इतना ही देना है कि मिक्सर से भी फायदा होता है, जूसर से भी होता है, तो आप जूसर इस्तेमाल करना है तो आप जरूर कर सकते हैं। मेरा ये कोई इससे रोल नहीं है, तो आप उसमें जूसर में बनाइए या मिक्सर में बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब भी मिक्सर में बनाने की बात मैं करता हूँ, तो मैं लोगों को ये भी बात बताता हूँ कि थोड़ा सा आप ठंडा करके भी पीजिए, तो उसका जो कभी कभी कुछ लोगों को बदबू आती है ऐसी, तो वो चली जाती है। तो थोड़ा ठंडा करके भी आप पी सकते हैं। तो आप जूसर में बनाइए, आप मिक्सर में बनाइए, सिर्फ प्यार से पीजिए, आपको फायदा हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। अच्छा, मुझे now लगता है I'd like to say thank you so much. Really appreciate. It was a wonderful all your message. Definitely we will follow. And from हमारे हेलो सब हेलो लोगों के साथ, thank you so much. किरण फिर जी, मिलेंगे हम। आप मेरे गुरु बंधु है, आप मेरे गुरु बंधु है। थैंक यू सो मच। आपकी गाइडेंस से काफी लोग को फायदा हुआ है। आपका आवाज चली गई, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। आपका हाँ, आवाज हाँ आवाज है, अभी आई, आवाज नहीं। अनम्यूट। आप मेरे सीनियर गुरु बंधु है, तो आपकी गाइडेंस से सब लोग जिनको भी फायदा होगा और जिनको भी क्वेश्चन होगा, वो आपको डायरेक्ट फोन कर सकते हैं। आपकी बुक में आपका नंबर भी दिया हुआ है। आप तो सारे 360 डेज सब लोग को हेल्प ही करते रहते हो। तो हम आपका जब भी सेमिनार हो जाएगा, ओके, जब भी प्लान किया होगा, तो हमें प्लीज हमको बता देना, तो हम हमारी व्हाट्सएप साइट पे लगा देंगे। तो लोग वहाँ जो इंडिया विजिट करते होंगे, तो वो लोग आपको आके मिल सकते हैं और अटेंड कर सकते हैं। तो अभी अब 6 महीने के बाद हम आपको बुलाएंगे, तब आपका लेक्चर हम इंग्लिश में भी रखेंगे, तो वो भी चलेगा। तो वो हमारा गोल है अभी। और थैंक यू सो मच। एंड आपकी बुक मिल गई, बुक बहुत ही बढ़िया बुक है। ये बुक में तो काफी ज्ञान दिया हुआ है, तो हम सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमने अभी तो लिमिटेड ही क्वांटिटी मंगवाई है। थैंक यू टू हरेश भाई फ्रॉम फ्लोरिडा। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे भेज दिया, वहां से मेल एयर फ्रेट से मंगवाया और मुझे भी एयर फ्रेट से यहाँ भेज दिया। तो मैं सब लोग के साथ शेयर करूंगा और आपके साथ बात तो रहती होगी। और आपको हम हमारी व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर बना देंगे, तो आप भी कुछ भी सवाल आ जाएगा तो आप उसमें भी हमको गाइड कर सकते हो। थैंक यू सो मच। कल्पना जी को मेरा नमस्कार करना, और आपके बेटी को भी मेरा नमस्कार करना। बाद में आप सबको थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे। जय तुलसीराम। थैंक यू। थैंक यू दीपक भाई।